Hi everyone, how are you feeling? I can see that you are all super excited over here. So let's begin with the event. Okay, you make a decision to start and you are halfway there. A wonderful morning to everyone. I'm Aditi Modi, a second year student of Computer Science Engineering and a member of Google Developer Student Club of our college. I hope everyone is as enthusiastic as I am to learn all the useful things in this 2-day event on open source. So let me ask you one question. So, on a scale of 1 to 5, how much do you know about open source? Please do let me know, and you can put it in the chat box as well. Okay, 1, 5, that's great. Okay, Archit knows 3, okay, Anshul 6. That's pretty great. Nah. Oh, 100. Newbie, you guys knows a lot. 9, 6, 0.8, 1. That's great. Okay, so we've got a very interactive audience. 3, 2, Anshul 2, Ashwin 3. Oh, that's great. It's better than me, I guess. So okay, so I can give myself maybe 2 stars. Okay, apart from all the skills and knowledge that I'm going to gain, I'm super excited to grab the goodies. Yes, you heard it correctly. And for the same, we would like to thank the sponsor of the event, Monad Infotech. So let's see how you can earn them too. Firstly, you must join the chapter page, for which the link will be provided in the chat box. Then you must attend both the events, then actively participate in the quizzes. You must complete the hands-on project given in the event, and don't forget to fill the feedback form. So keep an eye out of it for the event. Lastly, if not joined the Discord server, make sure to join it as all the top performers will be announced there. Okay, so now I would like to call our extremely talented fellow mates, none other than Mustafa Dhar and Yash Saigal, to help us get acquainted with open source. Over to you, Yash. Thank you. Okay, I should be audible now. Yes, Yes, Yash, Yes, yes. you're audible. you are. Cool. So thanks Aditi for introducing us to the event and calling us as well. So myself, Yash Saigal, I'm currently serving here as a mentor at MUGDSC, both for like open source and web dev department. Also, I'm the founder of the Design Systems organization on GitHub. So, like, if you're interested in front end and UI UX, just feel free to reach me out, and we can have a very good call regarding that. And other than that, I'm currently interning at a startup called Economize.cloud as a front end intern. Yeah, that's some stuff about me. Mustafa, would you like to go next? Okay, wow. Great, yes, again. Now introducing about me. I am Mustafa Dhar and I'm currently in pre-final year of my undergraduate program in CS IoT. Also, my recent experiences include Google Summer of Code, for which I contributed in my second year of uh, graduation, right? And apart from that, I was also the research and development head at Bari Labs, where we done lots of innovation in technology. So yeah, that was pretty much about me. Now next would be yes, would be taking the brief on what we are going to do in day one and day two. Yeah, sure. Can you change the slide? Okay. Yeah. Yes. Cool. So once again, welcome everyone, and like these are the things that we are going to cover in this particular bootcamp. So it's a 2 day long bootcamp, like not 2 day long, but like a set of sessions will be there. So like today on the day first, we are going to cover the introductory part of open source, and like how you can get started with open source, what are open source projects and stuff like that. So we are going to cover that. After that, we are going to look upon some of the best practices, and then yeah, like we are going to discuss some basic terms as well on GitHub and Git. And at the end of the session, we are going to host a very small web page on GitHub Pages. So it's gonna be a really fun activity. And yeah, on day two, we are going to do a lot of hands-on stuff. So I'm gonna teach you about Git branching, and we are going to create a small project out of it so that you can also contribute. And Mustafa is also going to cover a project where he will going to
show you how to create a portfolio and host it on GitHub Pages. So it's gonna be a really fun session. Yeah, Mustafa, you can start with the next slide. Am I audible right now? Wait, Mustafa, you are on mute. I have asked Yes, you to unmute. yes, Sorry, yes, you sorry, are sorry. audible. Am I Yeah, audible now? yeah, you are audible now. Go ahead. आई थिंक ठीक है. तो इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया सब कुछ. बट डे 2 में अपन जो जिस पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, राइट, वो पोर्टफोलियो में अपन लाइव एक पोर्टफोलियो बनाएंगे और उसको गिटहब पेजेस पे होस्ट करेंगे. मतलब मोस्ट ऑफ यू विल बी इन फर्स्ट ईयर, उनके लिए पोर्टफोलियो वेबसाइट वगैरह भी थोड़ा नया होगा, बनाएंगे, उसको होस्ट भी करेंगे, राइट. सो डे 2 में होने वाला है. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट वी आर डिकोडिंग द ओपन सोर्स, राइट. तो इसमें ओपन सोर्स है क्या, मतलब जनरली क्वेश्चन अराइजेस कि ठीक है भैया, ओपन सोर्स बहुत सुना हुआ है, बट है क्या चीज ओपन सोर्स. जनरली यू कैन टेक एन एग्जांपल. या अपने किसी के लैपटॉप में विंडोज होगा, किसी के लैपटॉप में लिनक्स होगा, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट. दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम. अब एक जो है प्राइवेट है, माइक्रोसॉफ्ट का है, एंड एक लिनक्स है, लिनक्स जो कि ओपन सॉफ्ट है, ओपन सोर्स है, राइट. तो उसमें क्या है कि आप उसका सोर्स कोड देख सकते हो, उसमें कुछ एडिट कर सकते हो आपके हिसाब से, और आप कुछ पब्लिश भी कर सकते हो उसके ऊपर में बना के. तो डेट इज ऑल अबाउट ओपन सोर्स. इसके आगे इसमें बहुत सारे अपने पास में पॉपुलर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स है, लाइक मोजिला फायरफॉक्स, लिनक्स है, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, क्यूबरनेट्स है, जेंगो है. ये सारे क्यूबरनेट्स तो आपने अभी 30 डेज ऑफ जिसने किया होगा, 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड बहुत यूज किया होगा, ये भी ओपन सोर्स है. Yeah, good. And also I'm having a query, Mustafa. जैसे हमको पता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बट देयर आर अदर सॉफ्टवेयर एज वेल, जो ओपन सोर्स नहीं होते. तो कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि कोई प्रोजेक्ट ओपन सोर्स है, क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं. ओके, सो व्हाट वी कैन डू, एक लाइसेंस होता है. जनरली ओपन सोर्स जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो या तो गिटहब पे होंगे या गिटलैब पे होंगे, दोनों आगे में डिस्कस करेंगे क्या चीजें हैं. बट आइदर गिटहब पे होंगे, गिटलैब पे होंगे, उसका सोर्स कोड होगा, उसका लाइसेंस होगा कि आप उसको एडिट कर सकते हो और आपके नाम से पब्लिश भी कर सकते हो, और किसी भी चीज के लिए आप उस कोड को यूज कर सकते हो. तो वो जनरली ओपन सोर्स हो जाता है. और सेम वे जो ओपन सोर्स नहीं है उसको आप यूज नहीं कर सकते. लाइक विंडोज मैंने एग्जांपल दिया, अब आप उसका सोर्स कोड नहीं देख सकते हो कि बैकएंड में क्या हो रहा है. ठीक है, फ्रंट एंड में जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है, बट बैकएंड में क्या कोड है वो नहीं देख सकते. बट लिनक्स में आप देख सकते हो. दैट इज द एग्जांपल ऑफ दिस ओपन सोर्स. Yeah, correct. Good. So let's get into the like open source. तो जान लिया अपन ने कि यार क्या होता है ओपन सोर्स. ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन करने से क्या फायदा हो सकता है, अब ये जानते हैं, राइट. Yeah. So And personally, sorry to interrupt in between. I want to share a fact in between this. काफी helpful रहता है open source contribution. काफी straight forward हम discuss करते हैं. But काफी इसके real world benefits भी हैं. जैसे आप अगर real world projects में contribute करते हो, so it really helps in getting job opportunities, especially when you're contributing to big level projects like Facebook के project जैसे हो गए. तो उनके डेवलपर्स के साथ आप डेली इंटरेक्शन करते हो, नेटवर्क में रहते हो. So it really helps to grow your network and also grow your professional skills. Personally, I would suggest कि open source में just give it a shot. Try करो. Starting में काफी lengthy procedure होता है, but it's really going to help you. स्टार्टिंग में तो क्या कुछ आसान होता है यार, मतलब सभी टफ होता है. Starting. So yes. मतलब मैंने खुद ने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही फायदेमंद होता है यार ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन. आई पार्टिसिपेटेड इन गूगल समर ऑफ कोड 2021. कोडिंग स्किल्स इंप्रूव होते, अर्ली एक्सपीरियंस मिल जाता है. एज लाइक आई मीन थर्ड ईयर राइट नाउ, एंड बहुत सारे सीनियर्स होंगे जो फिर बोलता नहीं मुझसे मतलब कुछ, बट दे आर नॉट हैविंग दैट मच experience about the how to write code and how in real life code works. तो वो आपको एक अर्ली एक्सपीरियंस मिल सकता है इससे, राइट, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन करते से. और ऑब्वियसली नेटवर्क बढ़ता है तो कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है. कौन ढूंढने की बहुत कोशिश की मैंने, नहीं मिला मुझे, सो डोंट वरी अबाउट दैट.
Okay. तो ओके, अपने पास में ना बहुत सारे ऐसे ओपन सोर्स, जैसा अपन ने बात कर ली कि यार ओपन सोर्स होता क्या है, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन करने के क्या क्या फायदे हैं, राइट। अब उसके बाद में अपने पास में बहुत सारी ओपन सोर्स अपॉर्चुनिटीज है, राइट। जैसे अभी ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये बहुत कम है जो कि बहुत पॉपुलर है, बाकी देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर इन ओपन सोर्स, राइट। वन ऑफ देम इज गूगल समर ऑफ कोड। मतलब आप गूगल समर ऑफ कोड तो मैंने खुद ने पर्सनली पार्टिसिपेट किया था 2021 में, एंड एमएलएस फेलोशिप है, गूगल सीजन ऑफ डॉग्स है, हैकटोबर फेस्ट है, आउटरीच इंटर्नशिप है, गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड है। सो मोस्टली थीम ये है कि आपको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना रहता है, और ये लोग मेंटर करते हैं, आपको मेंटर असाइन होता है इन सब प्रोग्राम्स में। हैकटोबर फेस्ट के लिए नहीं होता है, क्योंकि ये आपको जस्ट जो पुल रिक्वेस्ट है जिसके बारे में अपन बात करेंगे बाद में, तो वो आपको सिर्फ सबमिट करनी रहती है, और उसके हिसाब से आपको कुछ स्ट्राइक्स वगैरह मिलते हैं। तो बाकी सारे में क्या होता है कि आपको कंट्रीब्यूशन करना है एंड ऑल दैट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको जो है जज किया जाता है उधर। सो गूगल समर ऑफ कोड की भी अपन अगर बात करें तो अच्छा टैग है, मतलब एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए जिसके ऊपर लग जाता है, तो राइट आई एम एक्सपीरियंसिंग। सो स्टाइपेंड भी काफी अच्छा होता है इसका, लाइक दिस टाइम इट वाज 1500 USD, एंड दिस आउटरीच वन इज अराउंड 6000 USD, राइट। तो मतलब यार काफी ज्यादा ही है। मतलब किसी ने अगर 4 साल में एक बार भी इसको कर लिया कंट्रीब्यूट वगैरह, इसमें कंट्रीब्यूट कर लिया, वो 4 साल की फीस भर सकता है अपनी कॉलेज की। सो बट मनी इज नॉट अ पार्ट, आपको लर्निंग बहुत मिलती है इससे, राइट। जैसे गूगल समर ऑफ कोड में आपको इंटरेक्शन होता है एंड ऑल ऑफ दैट। लाइक मी, आई वाज न्यूबी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, बट आफ्टर गूगल समर ऑफ कोड बहुत कुछ मतलब नया पता चला, क्या कैसे होता है, कैसे मतलब ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। सो ये था इसके अपॉर्चुनिटीज। डू चेक दिस, राइट। आपको जब सर्च करना है गूगल पे, मिल जाएगा आपको डिटेल्स, एंड यू कैन इजीली कंट्रीब्यूट। Yeah. And before that, like I'm like worried about the open source or like GSOC part. Like मैंने personally apply करा था, तो like and I got rejected. So like मेरे को personally पूछा था कि हम start तो कर लेते, but like एक proposal में हमको क्या चीज़ add करनी चाहिए, क्या चीज़ organizations देखती हैं, तो like इसमें अगर आप थोड़ा cover कर सको तो वो काफ़ी help करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो गूगल समर ऑफ कोड की बात करें ना, बहुत सारे लोग मतलब ओवर हाइप भी है थोड़ा बहुत, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और सीट्स लिमिटेड होती है। सो ऐसा है कि कुछ ही लोग सिलेक्ट होंगे, बट सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ आपका प्रपोजल पे होता है, राइट। तो प्रपोजल जब आप बना रहे हो तो उसका ध्यान रखना चाहिए आपको कि यार आप जो मेंटर्स है आप उससे बराबर फीडबैक ले रहे हो कि क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो उस प्रपोजल में, और बराबर डिस्कस करो उससे, मेंटर से। और ओपन सोर्स का रिजल्ट अनाउंस, सिलेक्शन गूगल समर कोड का रिजल्ट अनाउंस होने से पहले आपको कंटिन्यूअसली कंट्रीब्यूट करना रहता है, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन कि आपने कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग भी आपको सिलेक्ट करता है। एक पैरामीटर ये होता है सिलेक्ट करने का। सो दिस इज आर द थिंग्स वी कैन कीप इन माइंड व्हाइल अप्लाइंग फॉर GSOC. I think that solves your doubt. Yes, sir. Yeah, it really helped me. Hello, Mustafa. Huh? Yes. So there is a guy, Ishan Soni. He's having a doubt that can he publish an open source code on his name? Not you. If you have done some certain changes over there, मतलब आपने ठीक है लिनक्स जैसे एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, राइट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आपने लिनक्स का कोड उठाया, उसके ऊपर में कुछ जैसे उसके डेस्ट्रोस बने हुए, राइट, यूबंटू है, मैं पर्सनली किसी ने यूज किया होगा तो मैं मिंट यूज करता हूँ, लिनक्स मिंट। तो ये सारे डेस्ट्रोस है उसके। ये सेंस नहीं है कि आपके नाम पे पब्लिश कर सकते हो, बट आप कुछ और नाम से पब्लिश कर सकते हो उसको। लाइक लिनक्स तो सेम है, बट उसका जो डेस्ट्रो है, राइट, वो उसके नाम से पब्लिश्ड है, बट कोड तो उसका क्लास तो वही है ना, उसी क्लास में से वो कोड आया हुआ है, कुछ चेंजेस करके देन उन्होंने पब्लिश किया है। दैट वाज द थिंग। आई थिंक दैट क्लियर्स, ईशान। ओके, क्लियर। सो
Yeah. Any next doubt over here? Is there any- No, you can continue. No, there is. Mustafa. Huh? Yeah, you can continue. Yeah, you can Okay. continue. No, before this, there is one question. Is there any eligibility to apply for it? What you are talking about, like which program, Google Summer of Code or which one? Yeah, they are asking for GSOC only, Mustafa. Okay, so there is no eligibility. You just need to be enrolled in any undergraduate or graduate program, or even PhD can also apply. So हाँ, एक क्वेश्चन ये बनता है इसके ऊपर में कि यार सही टाइम क्या है इस चीज का कंट्रीब्यूट करने में, इसके लिए अप्लाई करने का. आई वुड से बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे, फर्स्ट ईयर इज द राइट टाइम. फर्स्ट ईयर में आपको कुछ पता नहीं होता, करो एक्सप्लोर, उस पर कंट्रीब्यूट करो, बहुत कुछ पता चलेगा. नहीं हुआ तो सेकंड ईयर में तो हो ही जाएगा. सो यस, टाइमिंग. ओके, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ठीक है, अपन ने बात करी कि यार जीसॉक वगैरह सारी अपॉर्चुनिटीज है, ये है वो है. अब प्रॉपर रोड मैप क्या हो सकता है उस चीज के लिए कि कैसे अपन स्टार्ट कर सकते हैं ओपन सोर्स में. It's like I was also a newbie over there previously. तो मैंने कैसे स्टार्ट किया on the basis of this, I'll be telling you. Right. सबसे पहले तो आपको थोड़ा बहुत कोडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी चीज में. लाइक अगर आप वेब डेवलपमेंट में हो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जो भी लगता है उधर, मशीन लर्निंग में हो तो उसके हिसाब से पाइथन वगैरह जो भी फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं, एंड वो आपको थोड़ा कोडिंग नॉलेज होना चाहिए. फिर उसके बाद में आप सीखो वर्जन कंट्रोल सिस्टम, that is most probably used Git 1. Git ही यूज होता है सब जगह पे, तो Git काफी अच्छा है in my consideration, और सब जगह यूज होता है, तो Git ही सीखो. और Git सीख, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको सीखे, क्या करें, क्या क्या चीजें है. My colleague Yash will go more deeper on this. तो अभी सिर्फ पॉइंट्स को टच करते हुए निकल जाते हैं कि क्या क्या है करना चाहिए on the basis of road map, right? तो फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं यार ओपन सोर्स प्रोजेक्ट. अब जैसे जीसॉक है तो उसके लिए जीसॉक है, आउटरीच ही है, गर्लस्क्रिप्ट समर ऑफ कोड है. तो इसमें सब में एक चीज कॉमन है कि आपको एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है इन द ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना बहुत क्रूशियल है. मतलब आप सबसे इंपॉर्टेंट मेरी नजर में तो यही है. मतलब आप अगर सही से प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि यार क्या सिलेक्ट करना चाहिए, तो आपके चांसेस वहीं पे बहुत कम हो जाते हैं प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट होने पे. अगर आपने जैसे प्रोजेक्ट सही सिलेक्ट किया है, सही इन द सेंस उसका जो टेक स्टैक यूज हुआ है प्रोजेक्ट में और ऑर्गेनाइजेशन में, 50% आपको आता हो, राइट, 50% आपको ना आता हो, चलेगा, वो आप लर्न करोगे ऑन द वे, राइट, जब आप कंट्रीब्यूट करोगे. तो वो चीज है, आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट अच्छे से सिलेक्ट करो, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें ही लगना चाहिए. फिर उसके बाद में उसके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन चैनल होते हैं, स्लैक होता है, IRC होते हैं, लाइक 20 ऑफ देम. तो वो अलग अलग सब करते हैं. बहुत इजी इंस्टॉलेशन होता है, इंस्टॉल करो और उनसे क्या है कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, ऑब्जर्व करो क्या क्या बातें चल रही है वहां पे एंड ऑल दैट. फिर आप उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करो कि मैं यहाँ पे नया हूँ, हाउ टू गेट स्टार्टेड विद दिस वन. तो वो लोग आपको बताएंगे कि आप जो है कैसे आप गुड फर्स्ट इशू से शुरू कर सकते हो, एंड दे विल गाइड यू, दे आर देयर टू गाइड यू, राइट. तो आप सबसे पहले मेरी अगर टिप लो आप, तो कोड बेस को देखना. और मतलब पहली बार मैंने जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कोड बेस देखा था, मैं तो घबराया हुआ था, मेरे से ना हो पाएगा ये चीज. बट इट इज अबाउट डेडिकेशन. क्या आप एक बार करा और आपको नहीं समझ में आया, छोड़ दिया, वैसा नहीं होता. आपको ठीक है, एक बार करा, नहीं समझ में आया, नेटफ्लिक्स खोलो, सीजन एक आधी एपिसोड वगैरह देखो किसी सीजन का, वापस से लग जाओ उस चीज के ऊपर में, जरूर कुछ ना कुछ आएगा उस चीज में, राइट. तो कोड बेस एक बहुत वो हो जाता है, लेंदी सा चीज हो जाता है कि यार कैसे अपन इसको समझे, क्या हो रहा है, कहाँ पे अपने को कंट्रीब्यूट करना है. तो सबसे पहले तो आप देखो कि यार अपना जो जैसे आप CSS में कंट्रीब्यूट करने वाले हो, राइट, आपको CSS आती है, CSS में कंट्रीब्यूट करने वाले हो, तो उसकी एक रीडमी फाइल होगी, वहां पे फाइल स्ट्रक्चर होगा बेसिकली. तो आप उसको देख सकते हो कि CSS फाइल्स कहाँ पे पड़ी है और समझ सकते हो. और जैसा मैंने बोला, फिर
गुड फर्स्ट इश्यूज ढूंढो और उसको सॉल्व करो। गुड फर्स्ट इशू के बारे में यश सेगल बताएंगे कि कहाँ पे कैसे आप फाइंड कर सकते हो इन लेटर। और फिर कम्युनिटी तो है ही सारे डाउट सॉल्व करने के लिए, दे आर वेरी हेल्पफुल, राइट। तो आपको शर्माना नहीं है, बस पूछ लो डाउट। बट ऐसा भी नहीं कि कुछ भी पूछ रहे, थोड़ा सोच समझ के कि यार क्या चल रहा है वहां पे और क्या मुझे पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार एफएक्यूज भी होते हैं, राइट। तो आप हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन है वो एफएक्यूज में ऑलरेडी हो, तो पहले एफएक्यूज देख लो और फिर कुछ क्वेश्चन पूछो। तो दिस इज द रोड मैप। किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या यहाँ पे? ओके, आई थिंक देयर आर लॉट। Okay, how to create a good team for the fest and hackathon. I would say कि एक्सप्लोर करो, कनेक्शंस बनाओ, जो अच्छा लगा उससे दोस्ती करो और बातचीत करो, आगे बढ़ो। As simple as that. Okay, Mustafa, someone is asking ओपन सोर्स के ज्यादा फायदे हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के, इस पर कुछ थॉट्स? ओके, आई वुड से दोनों अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है। ओपन सोर्स आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपका लॉजिक अच्छा बनाएगा। अगर आप बात करो प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑब्वियसली दोनों चीजें बहुत हेल्प करने वाली है। इवन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो वो जो डीएसए वगैरह के राउंड होते हैं, अगर गूगल के लिए अप्लाई करना है तो वहां पे तो कॉम्पिटिटिव चाहिए ही चाहिए। आई मस्ट नॉट से कि यार चाहिए ही चाहिए, बट कॉम्पिटिटिव करने से क्या है कि लॉजिक अच्छा बिल्ड हो जाता है और अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है। और ऐसा नहीं है कि ओपन सोर्स नहीं देखते, ओपन सोर्स भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इन प्लेसमेंट। जब आप अपना रिज्यूमे किसी एचआर को फॉरवर्ड करते हो और वहां पे आपका ये एक प्रोजेक्ट है कि यार मैंने जैसे गूगल समर ऑफ कोड में या फिर गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड में या आउटरीच में, एनी ऑफ देम मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया हुआ है, और वो लोग जाके देख सकते हैं कि यार ये क्या क्या चीजें की हुई है, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एचआर पे। शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, स्पेशली इन ऑफ कैंपस। So yeah, this was it. Hope it cleared it out. Is there any next question? Yes, there's one more question. How to manage time between academics, CP and development side? Okay, great question. मतलब ये तो मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। So I must say, मैं सबको रिकमेंड नहीं करूंगा, बट मेरे बैकग्राउंड में देख ही सकते हो एक वाइट बोर्ड लगा हुआ है टू मैनेज ऑल दैट पार्ट, राइट, पैरेलली सारी चीजों को करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि सारे आप कहीं पे भी आपके थॉट्स को रख सकते हो कि यार जैसे कॉपी में आप नोट डाउन कर सकते हो कि यार आपने डिवाइड कर दिया है आपकी चीजों को, आपको सीपी भी करना है, एकेडमिक्स भी करना है, और जो है ओपन सोर्स वगैरह प्रोजेक्ट्स वगैरह भी अच्छे करने हैं। तो थोड़ा थोड़ा टाइम डिवाइड करो। फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो बहुत सारा टाइम है अगर वो अब देख रहे हैं, और सेकेंड ईयर वालों के भी बहुत टाइम है, और थर्ड ईयर वालों में लाइक मी जब जागो तब सवेरा। सो या, कैन गो फॉर इट। There's one more question, I guess. Do we need to Okay. apply individually or as a team in any open source? There is no need of team as such. There might be some program, मतलब आप बहुत सारे होंगे भी, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स है ओपन सोर्स में, तो कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी होंगे जो टीम के साथ में कंट्रीब्यूट करना होगा, बट जो अभी लिस्टेड है वहां पे तो इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करना रहता है। सो नो नीड ऑफ टीम एनीथिंग। हाउएवर टीम होना अच्छा है, आपके डाउट्स वगैरह हेल्प बहुत मिल जाती है। सो वो है। एनी अदर क्वेश्चन? सेशंस की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? ओके, ऐसे सेशंस की इंफॉर्मेशन मिलती है डिस्कॉर्ड चैनल से, गो देयर। बिल्कुल, अरे इंस्टाग्राम वगैरह पे ही मिल जाएगा आपको, पोस्ट तो होता रहता है। एनी अदर क्वेश्चन? No, you can proceed. ओके, आई थिंक वी आर प्रीटी मच सॉर्टेड दिस। ओके, वन मोर थिंग, जैसा अपन ने डिस्कस किया ना, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, लाइक ओपन सोर्स बहुत हेल्प करता है, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देगा, और
जब अप्लाई करोगे तो मैंने तो ऐसा नहीं देखा जो जीसॉक क्लियर किया हो या फिर किसी भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया हो, किसी प्रोग्राम में सिलेक्ट हुआ हो और उसका कुछ प्लेसमेंट ना हो, मैंने नहीं देखा ऐसा, बट होंगे भी. सो दिस इज वन पॉइंट आई वांट टू कन्वे टू यू. तो ठीक है. नाउ माय कलीग यश सहगल विल go through this or git installation, GitHub overview and all that. So yeah, over to you. Yes, second. Hello. Yes. Are you there? Yes, you are not audible. Okay. I think I think Yash is not in the meet. Can we wait, or Mustafa? We can take more questions till Yash comes. Yeah, some of network problems is there in Yeah, by yeah. side. okay, we can take some more question. Yeah, you Over all there. can drop your questions till the time Yash comes. Yeah, guys, drop your questions. Okay, like there's one more question. Which organization are there in GSOC open source? There are lots of organization contributing there. मैं 2 मिनट अगर आप स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं तो बता ही देता हूँ 2 मिनट. Let me just share my screen. क्या क्या सब है. Okay. जैसा कि अपन बात करें गूगल समर ऑफ कोड की, right? Hope the screen is visible, right? Screen is visible? Yes, Anyone? it is visible. Okay. ठीक है. तो जैसे ये गूगल समर ऑफ कोड का होम पेज है, यहाँ पे आप जाओगे ना तो ये सारे पास्ट आर्चिव्स है जो कि 2021 में गूगल समर ऑफ कोड जो हुआ था, तो आप पूरा इसका ऑर्गेनाइजेशन जिसने पार्टिसिपेट किया था वो सारी लिस्ट देख सकते हो. लाइक देयर इज देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइज जैसे 2021 है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से सारी, तो आप देख सकते हो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पार्ट ले रही है इसमें. एंड वन मोर इनसाइडर टिप ओवर हियर कि यार आप अगर जेसॉक में थानी लिए करना ही है तो एक लिस्ट बना लो जो गूगल समर ऑफ कोड में फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट कर चुकी है, राइट? और उसमें अभी से कंट्रीब्यूशन शुरू कर दो. ओके, तो यहाँ पे ना मतलब अब सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है. अब यहाँ पे जैसे कि प्रोजेक्ट्स भी है, तो आप ये भी देख सकते हो कि किस ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रोजेक्ट था. लाइक इफ आई सर्च फॉर माइन राइट, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे जैसे कि यहाँ पे है. तो आप ऐसे यहाँ पे जाके पूरा प्रोजेक्ट दे सकते हो. जैसे मेरा 3D व्यूअर इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट था, तो यहाँ पे आप जाके सोर्स कोड भी देख सकते हो क्या है क्या नहीं किया मैंने इन ड्यूरेशन ऑफ गूगल समर कोड, और ये उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है. और आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल ही जाएगी कि किस लिए है ये प्रोजेक्ट, क्या क्या होने वाला है इसमें. Any other question? Okay, so I think Yash is back, so we can proceed with the Okay. slides. Okay. Cool. Like Okay. Mustafa, can you stop the screen sharing? Yeah, sure. Also, guys, there are lots of questions coming up. So we will be answering it in a Q&A session that we have at the end of today's session. So please hold your questions till then, because we won't be able to give answers to each and every question. There are lots of questions. You can also ask your question and doubts on our Discord server. We have an open source channel over there. Okay. Yeah. Is my screen visible to everyone? Yes, Yash, it is. Okay. Cool. So it's great. Like Mustafa has covered a lot of stuff, like how you can get started.
Now, like, what are the things required, which you need to know before getting started? Like, Git कैसे use करते हैं? Like, हम commands नहीं पढ़ेंगे आज, but like काफी straightforward चीजें so that you can contribute to a certain project. So, in like this half of the session, we are going to look upon the Git installation part. So, like, हम देखेंगे कैसे installation होता है. Although, like, I'm not going to install it completely, but like काफी straightforward तरीका है, so I will explain you that. After that we are going to take a GitHub overview. तो हम github.com वेबसाइट पे जाएंगे एंड पूरी वेबसाइट का ओवरव्यू लेंगे कि लाइक कौन कौन सी टर्म्स हम यूज़ करते हैं वहाँ पे, किस चीज़ का क्या मतलब है, एंड लाइक सो दैट यू विल बी कंफर्टेबल व्हेन गेटिंग स्टार्टेड. देन उसके बाद हम एक GitHub रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे एंड उसमें हम चीज़ें देखेंगे जैसे लाइसेंसेस एंड रीडिंग, एंड उसके बारे में हल्का सेलेक्ट करेंगे. एंड एट द एंड लाइक वी हैव स्पेशल लाइक फीचर GitHub पेजेस, तो हम उसको यूज़ करके देखेंगे so that you can like know how to use it properly. Cool. So like talking about the first part, like which is the git installation. So काफी straight forward like step है. First you need to go to this website, so I will share the link in the chat as well, and you just need to select for like your specific operating system. अगर जैसे मेरे पास Windows है, right? So मैं यहाँ पे directly Windows के लिए install कर सकता हूँ. Am I properly audible now? Like someone is saying that. Yes, yes, you are audible. Okay. Cool. So like जैसे अगर आप Windows user हो, so you can go with this one. Also like if you're a Mac user, so this is the build you can use, and Linux के लिए tab version source code तो है. So काफी straight forward है. Like मैं install नहीं करूँगा, but it's very simple. Like just how you download any game or other software. Like just have to go like next, and like accept each and everything, and just keep the settings as default. Like काफी straightforward है, and then just install it. तो हो जाएगा वो install. And the way you can like test it out कि git install हुआ है कि नहीं, it's like you can just go to any of your like terminal, like PowerShell में जा सकते हैं, command prompt. जैसे I'm going to use PowerShell, sorry, command prompt, because I'm a Windows user. So let's say like you've installed it, just write git here, and if it's showing you like a whole set of options, like you can do all the branching and checkout thing, it means that you have git installed in your machine. If it's not showing like that, it says that it's not in your system. तो आप एक बार रीस्टार्ट करके देखना, although like ये इशू आता नहीं है, बट फिर भी like चैट में लिखा है like मैं प्रोसेस करके बता सकता हूँ वैसे तो, बट like आई एम नॉट एबल टू इंस्टॉल इट बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी है इंस्टॉल. So like वो मतलब मैसी क्रिएट करेगा, but it's very straightforward. अगर कोई डाउट आता है throughout the procedure, so feel free to ask it on Discord as well. So like उसमें भी हम हेल्प कर देंगे. Alright. Cool. So it's very straightforward, and अभी हम like आप चाहो तो सेशन के बाद भी इंस्टॉल कर लेना, काफी like straightforward है. अभी हम कोई git commands यूज नहीं करने वाले. And also if you like want to learn the basics of git, here's the link for you. It's a very short course by Microsoft only. So like इसमें आपको काफी like basics तो पता चल ही जाएंगे like git के, कैसे git initialize करते हैं, क्या basics हैं, कैसे staging concepts आपको समझ में आएंगे, कैसे files को stage करा जाता है, and like track रखना आपको basically आ जाएगा. And there's gonna be a quiz as well tomorrow, like on the basis of all these documented document, like entire document. So like जितने भी इसमें बेसिक चीज़ें हैं, आप मेक श्योर कि आपने एक बार एटलीस्ट विजिट करी हो, एंड एक बार आप समझ के देखना. ऑल्दो लाइक वी आर गोइंग टू यूज दीज थिंग्स टुमारो एज वेल, तो मैं एक ग्लिम्स दूंगा कल भी, बट इट्स गुड टू नो लाइक क्या बेसिक्स हैं, क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, राइट. सो जस्ट मेक अ लाइक नोट ऑफ इट कि आपको मतलब एक एटलीस्ट विजिट लेना है उस वेबसाइट पर. आई थिंक आई शेयर द लिंक. ओके ओके, सो बेनिफिट क्या होने वाला है यश इसमें? मतलब आपने बताया ये कोर्स है, राइट? 2 से 2.5 घंटे का कोर्स है, बट व्हाट इज द पर्क्स फॉर दिस सर? So like वन as गोस थ्रू द कोर्स. yeah, as a team has decided like हमने कल सेशन के रात बाद में मतलब क्विज भी रखी है. So like that's gonna be a very like easy quiz जो कि based होगी like इसी पूरे documented material के ऊपर. तो अगर like आप उनमें से सबसे ज़्यादा स्कोर करते हो, so there's gonna be like some prizes for you जो कि like I think हम सेशन के बाद दिखाने भी वाले हैं.
So just make sure Okay, that guys. yeah. So like काफी Go for it. They are good buddies. yeah. तो like काफी बेसिक होगा तो जस्ट मेक श्योर कि आप एक बार विजिट करो साइट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉक्यूमेंटेड है वो तो एक बार समझ के देखना So, hi everyone, how you all are feeling? A very cheerful morning, you all. We are so glad to see you again. I hope that you had learned a lot from yesterday's session. So far, we have covered most of the theoretical aspect, but today we'll be having some activities like quiz and hands-on project. So make sure that you have joined from laptop for better understanding. And if you have not joined yet, kindly do it. Also, you will definitely learn a lot of new things today, so try to be as attentive as possible and grasp as much as you can. So, with this note, let's begin with our today's session. Over to you, Yash. Thanks, Aditi. Just let me know I'm perfectly audible right now, correct? Yes, you are. Yes, Yash, you are. Okay, cool, great. So, like आज जैसे डे 2 है तो कल डे 1 में हमने काफी सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा लाइक व्हाट आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स एंड लाइक गिट एंड गिटहब क्या होता है व्हाई वी यूज इट आज हम थोड़ा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज में ये सारी चीजें यूज करेंगे राइट सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज लाइक वी आर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स एंड उनके थ्रू लाइक हम काफी सारे गिट ऑपरेशंस एंड काफी सारे टर्म्स को भी एक्सप्लोर करेंगे सो या लेट्स गेट स्टार्टेड सो first of all like let's take a short overview of GitHub like GitHub अब हमने देख तो लिया कि प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड देन लाइक यू कैन कंट्रीब्यूट टू देम बट क्या क्या चीजें होती है लाइक एक GitHub रिपोजिटरी में so like a general GitHub repository contains all of these things like issues pull requests and labels and like So, yeah just sure. can you explain first GitHub repositories? What are repositories? No. Yes, sure. So basically, like it's like a folder on GitHub, correct? Like in your machine on also या जैसे आपके projects होते हैं, correct? आपके projects हैं, आपके code bases हैं. So जो main folder होता है, उसको GitHub पे एक term दी हुई है repository. And like in a repository, you have like some more features as well. कि like आप issues list कर सकते हो, आप teams में काम कर सकते हो, collaborate कर सकते हो, multiple लोग एक project में काम कर सकते हो. So like that's a like different term given to a project on GitHub. So that's what we call a repository. So like एक repository में ये तीन चीजें तो like usually होती है बाकी like काफी सारी चीजें होती हैं but like the basic things are issues, pull requests and labels. So now what are issues? Like जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि like issues are the issues in the project जो यहाँ पे listed रहते हैं. So for a reference like let's go to a project. लाइक उसमें लाइक काफी अच्छे से मैं आपको बता पाऊंगा कि लाइक इश्यूज कैसे आपको अप्रोच करने चाहिए व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ इश्यूज हाउ टू अप्रोच सर्टेन इश्यूज स्टफ लाइक दैट सो जैसे आप इस प्रोजेक्ट में देख सकते हो कि लाइक काफी सारे इश्यूज लिस्टेड है करेक्ट एंड अब आप लाइक एज अ बिगिनर किसी भी प्रोजेक्ट में जाते हो तो आपको एक डायरेक्टली तो कुछ समझ में आता नहीं कि क्या हो रहा है यहाँ पे ऑल्दो लाइक आपने अगर वो प्रोजेक्ट यूज भी करा हुआ है फिर भी आप समझते हो कि मैंने यूज तो करा है एंड आई ऑल्सो नो कि लाइक हाउ टू यूज इट बट अब मेरे को कल को कुछ इश्यूज इसमें फिक्स करने तो लाइक मैं स्टार्ट कैसे करूँ करेक्ट तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है इश्यूज का सबसे पहले आप इश्यूज देखते हो कि लाइक उस प्रोजेक्ट में उस समय लाइक जिस पॉइंट पे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो कौन कौन से इश्यूज हैं राइट एंड किस किस तरीके के इश्यूज है लेट्स से लाइक इधर काफी अच्छे से आइडेंटिफाई करा हुआ है कि लाइक दिस इज अ बग काइंड ऑफ एन इशू दिस इशू इज रिलेटेड टू अ फीचर रिक्वेस्ट राइट सो अगर आपको लगता है कि ओके मेरे को एक फीचर इंप्लीमेंट करने में हेल्प करना है सो यू कैन गो विद दीज काइंड ऑफ इश्यूज करेक्ट एंड व्हाट आर लेबल्स इन दिस केस सो लेबल्स बेसिकली होते हैं लाइक आप इनके थ्रू अपने इश्यूज को फिल्टर कर सकते हो लेट्स से आप बिगिनर हो एंड आपको अभी लाइक कोड करना नहीं आता लाइक इतना अच्छे से आपको डिजाइनिंग आती है एंड लाइक यू वांट टू लाइक पिक सम डिजाइन और समथिंग लाइक दैट सो आप बेसिकली क्या कर सकते हो आप यहाँ पे फिल्टर करके देख सकते हो कि कौन सा लेवल आपके लेवल के हिसाब से है एंड लेट्स से कि लाइक यहाँ पे आपका डिजाइन वाला लेवल है करेक्ट डिजाइन दिस वन सो लाइक जैसे आप ये करोगे तो आपके सारे डिजाइन रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे राइट सो लेबल्स हम इसलिए यूज कर सकते हैं ताकि हम कैटेगराइज कर सके इश्यूज को करेक्ट एंड लाइक अब आपको लगता है ओके लाइक
अब ये इश्यूज तो मेरे को थोड़े बहुत आ रहे हैं समझ, अब आपको लगता है कि चलो ये वाला देखते हैं, तो इसमें आप जाके देख सकते हो कि ओके लाइक यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, लाइक ये एक रेफरेंस इमेज है, देन लाइक यू नो इनको कुछ ऐसा डिजाइन इम्प्लीमेंट करवाना है, एंड आपको लाइक ऐसा कंट्रीब्यूटर लगता है कि आई वुड लाइक टू वर्क ऑन दिस इशू, तो आप यहाँ पे असाइनमेंट मांग सकते हो कि लाइक प्लीज असाइन दिस इशू टू मी, मैं लाइक इन चीजों से इसको फिक्स कर सकता हूँ. So like that's how you can get started with open source. Like issues से starting होती है. Now like issues and labels तो cover हो चुके हैं. Now what are pull requests? So जैसे जब आप किसी भी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो राइट, एंड आपने कुछ भी कोड चेंजेस करे अपने कॉपी में, तो वो कोड चेंजेस डायरेक्टली तो लाइक यू नो मेन आप फाइल में जाके मर्ज तो कर नहीं सकते हो राइट. लाइक आपका अगर प्रोजेक्ट है तो फिर भी आप कर सकते हो, बट लाइक इफ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू अ कंपनीज प्रोजेक्ट, लेट्स से फेसबुक का कोई प्रोजेक्ट है राइट, तो उनमें लाइक आप कैसे यू नो डायरेक्टली मर्ज तो नहीं कर सकते. तो लाइक उसमें लाइक यू हैव टू यू नो रिक्वेस्ट द मेंटेनर कि लाइक मैंने कुछ चेंजेस करें, प्लीज रिव्यू दीज चेंजेस एंड प्लीज यू नो लाइक इफ एवरीथिंग इज करेक्ट आप इसको मर्ज कर लीजिए अपने मेन कोड बेस में. So that's the main concept behind pull request. So there's a question in the chat like what are the levels labeled in the like 1 2 3 4. So these levels are like especially for you know representing the priority of you know the task. Let's say like अगर level 1 का issue है, it means कि like ये सबसे you know priority वाला है, इस पे सबसे पहले काम करना है right. And अगर like level 4 का है तो you know like according to the project like उसकी priority थोड़ी कम है. And similarly like you nearly have like around level 5 to 6. Usually ये डिफर करते हैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. लाइक यूजुअली जो स्टैंडर्ड्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि लाइक लेवल्स मतलब प्रायोरिटी, बट कभी कभार लेवल्स मतलब कर देते हैं कि लाइक ये लेवल 1 का इशू मतलब सबसे इजी होगा, लेवल 2 का सबसे टफ होगा. तो लाइक इट डिपेंड्स कि प्रोजेक्ट मेंटेनर ने क्या यू नो चीज क्या मतलब क्या लेवल क्या डिफाइन करा है. सो अगर आपको ये देखना है तो लाइक उसके लिए उसने मोस्ट प्रॉब्ली लाइक readme.md में स्पेसिफाई कर रखा होगा कि लाइक लेवल्स का क्या मतलब है, एंड लाइक डिजाइन रिलेटेड कौन कौन से लेवल्स है हमारे पास राइट. सो लाइक इट बट यूजुअली लाइक जो स्टैंडर्ड्स कहते हैं लाइक इट यूजुअली डिफाइंस द प्रायोरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू. All right, so like that's about the basically you know like terms that we have in a GitHub repository. ऐसे तो काफी चीजें होती हैं, like you have discussions and actions and project boards, a lot of stuff. But like ये सबसे basic चीजें जो हम आज cover करेंगे hands-on activity में. Now like what is a readme file, right? जैसे हमने समझ तो लिया कि like readme file आप देख लो जाके, but readme file में क्या क्या चीजें होती हैं, correct? So first, readme file explain कर देना यार. What are readme files? Yeah, sure. So readme file is like a small documentation of that particular project, right? मतलब एक readme file में सारी चीजें define रहती है. Let's say like आप एक शेफ हो करेक्ट, एंड लाइक आपको कोई डिश बनानी है, तो आपको पता है कि लाइक यू नो आपको क्या क्या चीजें यूज करनी है, कितना अमाउंट में क्या चीज ऐड करनी है, बट आपको ये नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी. लाइक इट्स अ न्यू किचन फॉर यू राइट. सो लेट्स से दैट किचन इज दैट प्रोजेक्ट, एंड लाइक जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपके यू नो मॉड्यूल्स हैं, फाइल्स हैं, आपको नहीं पता वो कहाँ है, बट यू नो हाउ टू लाइक वर्क विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आप जाके कोड चेंजेस कर सकते हो, यू नो सारी चीजें हो जाती है. बट लाइक एक रीडमी फाइल में यही मेंशन रहता है कि लाइक यू नो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे आप अप्रोच करोगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को. सिमिलरली लाइक शेफ वाला एग्जांपल अगर हम ले तो लाइक इंग्रेडिएंट्स कहाँ पड़े, स्पाइसेस किस सेक्शन में होती है, आपको लाइक इस चीज को ऐसे यूज करना है, इसको यहाँ मत रखना है, इसका टेम्परेचर ही होना चाहिए. तो लाइक अप्रोच जैसे आप करते हो किसी कोड बेस को, उसके सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मेंशन रहते हैं. सो दैट्स अ रीडमी फाइल. All right. Now, like what a README file usually contains, like हमने पढ़ तो लिया कि README file पढ़ लो, but अब README file में like काफी चीजें होती हैं, like depending upon the project, designing भी होती है, banners, काफी images भी होती है, but like usually we cover all of these sections, especially these 3 sections. So first section आपका होता है like description of the project, correct? Like project है क्या actually, like क्या चीजें ये solve कर रहा है, और like ये project बना ही क्यों at the very first place, correct? एंड लाइक पूरा इंट्रोडक्शन दिया होता है प्रोजेक्ट में, ताकि जो कंट्रीब्यूटर है वो एटलीस्ट समझे तो सही कि प्रोजेक्ट है क्या, मेरे को इसको किस तरीके से यू नो समझना है, वो सब यहाँ पे मेंशन रहता है. देन सेकंड सेक्शन दैट वी यूजुअली ऐड इज द हाउ टू सेट अप प्रोसीजर. सो लेट्स से इफ यू आर अ कंट्रीब्यूटर करेक्ट,
एंड आप इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो एंड यू डोंट नो कि लाइक हाउ टू सेटअप, आपको पता है कि चलो मैं कोड चेंजेस तो कर लूंगा बट मैं अपने लोकल सिस्टम में करूँ कैसे, इसको सेटअप मैं कैसे स्टार्ट करूँ कोड करना। तो उसमें सारी स्टेप्स दी रहती है, लाइक यूजुअली कि आप पहले इसको क्लोन करो, देन आप फिर सीडी करके इस प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, देन फिर आप ये पैकेजेस इंस्टॉल करो। एंड अगर आप विंडोज यूजर हो तो आप ये कमांड लिखो, अगर आप मैक यूजर हो या फिर लिनक्स यूजर हो तो ये लिखो। ये सारी स्टेप्स वहाँ पे मेंशन रहती है ताकि एज अ कंट्रीब्यूटर आप लाइक स्टार्ट कर पाओ कंट्रीब्यूट करना, करेक्ट? ओके, सो लाइक ये दो सेक्शन होते हैं। देन यूजुअली लाइक एवरी प्रोजेक्ट हैज अ कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेक्शन, जिसमें लाइक आपके डेवलपर्स की डिटेल्स दी रहती है, लाइक जो भी प्रोजेक्ट मेंटेनर्स हैं या फिर जो प्रोजेक्ट के क्रिएटर्स हैं या फिर जिनका प्रोजेक्ट है उनकी डिटेल्स दी रहती है कि लाइक आपको कल को रीच आउट करना हो तो आप रीच आउट कर सकते हो, मे बी लाइक रिगार्डिंग दी कोड बेस और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा या फिर कुछ फर्दर डिस्कशन आपको करने हैं प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो वो आप लाइक डिटेल्स आपको दी रहती है, तो आप यू कैन रीच देम आउट एंड यू कैन गेट स्टार्टेड। Okay, Like Yash, as you have said leading maintainers, who are these maintainers? Can you explain this? yeah, sure. So maintainers are like usually people who maintains the project, correct? Like जैसे अगर मैं इस project में जाऊँ, so like here you can see like there's a person, like his name is Vivek Nigam. He's the creator of this project, but also maintaining this. So like एक maintainer का काम ये होता है कि वो सारे issues का track रखता है कि कौन से issues raise हो रहे हैं, क्या वो like वैलिड भी है कि नहीं, या तो बेमतलब तो नहीं हो गए, अगर बिल्कुल यूजफुल नहीं है तो उनको हटा दो, अगर यूज में है तो लाइक उन पर फर्दर डिस्कशन करके उनको लाइक एग्जीक्यूट करो। सिमिलरली अगर किसी ने कोड चेंजेस करे तो उनके कोड चेंजेस को रिव्यू करना एंड लाइक अगर कोई चेंजेस हैं तो वो सजेस्ट करना कि आपने इस पर्टिकुलर लाइन पे ये चेंजेस गलत तरीके से करें, प्लीज जस्ट मॉडिफाई दिस एंड लाइक फिर हम इसको मर्ज कर लेंगे। एंड देन लाइक सारे टेस्ट रन हो रहे हैं कि नहीं अच्छे से, और रीडमी अपडेटेड है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली मैनेज हो रहा है कि नहीं, कोड चल रहा है कि नहीं, ब्रांचेस परफेक्टली है कि नहीं, वो सब मेंटेन करना एक मेंटेनर का काम है। लाइक दिस इज व्हाट अ मेंटेनर डज डू। सो कूल, दैट्स अबाउट लाइक द रीडमी स्टफ। लाइक ये तो काफी ओवरव्यू हो गया, ये भी काफी थ्योरेटिकल था। सो ओके, Yes, there is a question yeah, I'm just in chat. reading. Okay, Got so one question. yeah, sure. So like if you are contributing to a project, like आपका कोड चेंज मर्ज होता है तो like आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, बट यू हैव दैट लाइक लिंक कि आप दिखा सकते हो कि ये एक मर्ज लिंक है, तो यहाँ पे आप मेरे सारे कोड चेंजेस देख सकते हो जो कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मर्ज हुए थे। सर्टिफिकेट्स तो प्रोवाइड नहीं करते प्रोजेक्ट मेंटेनेंस, बट या लाइक यू कैन डेफिनेटली क्रिएट अ सेक्शन इन योर रिज्यूमे जहाँ पे आप अपने कॉन्ट्रीब्यूशन की लिंक्स मेंशन कर सकते हो। तो लाइक जो HR या फिर जो भी आपका रिक्रूटर है वो जाके देख सकता है कि ओके यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड लाइक लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आपने जिस लेवल पे कंट्रीब्यूट करा है, क्या चेंजेस आपने करे, वो सब वहाँ पे जाके देख सकता है। तो आप वो सब मेंशन कर सकते हो, बट लाइक सर्टिफिकेट्स तो नहीं मिलते। अब देयर आर सम प्रोग्राम्स लाइक अक्टूबर फेस्ट अभी चल रहा है, अक्टूबर है, एंड लाइक काफी अदर प्रोग्राम्स भी होते हैं, उसमें आपको लाइक स्वैग्स एंड कुछ गिफ्ट्स मिल जाते हैं लाइक व्हेन यू कंट्रीब्यूट, राइट? तो अगर आप जैसे अक्टूबर फेस्ट की बात करें तो अगर आप 4 वैलिड कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो, लाइक नॉट अ DSA और लाइक CP प्रॉब्लम, अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो नहीं मिलेंगे। बट अगर आप लाइक आपने एक रियल वर्ल्ड चीज को सॉल्व करा है, भले वो छोटी सी प्रॉब्लम हो, बट लाइक कोड करके कुछ लाइक चीज को फिक्स करा है, इस लेवल के जो वैलिड कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, ऐसे अगर आप 4 या 5 कर लेते हो तो लाइक आप मतलब वैलिड हो जाते हो, फिर आप अपने स्टैक्स ऑर्डर करवा सकते हो। तो लाइक ऐसे अलग प्रोग्राम्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं गिफ्ट्स वगैरह, बट लाइक नॉट एवरी मेंटेनर गिफ्ट सर्टिफिकेट्स एंड स्टफ। सो ऑल राइट, देन ये तो रीडमी फाइल का हो गया। नाउ लाइक द फर्स्ट एक्टिविटी फॉर द डे। सो इस एक्टिविटी में लाइक हम रीडमी फाइल जो हमने अभी तक पढ़ी है जितनी भी, हम थोड़ा लाइक उसको यूज करके देखेंगे, बना के देखेंगे, एंड लाइक उसके बेसिक्स भी समझेंगे, राइट, कि मतलब चीजें होती कैसे। So for that, first we need to create a repository, correct? So how will we how we can create a repository? शायद मैंने cover नहीं करा था कल, तो आज मैं एक बार repeat कर देता हूँ ये process. So like it's a very easy task, like ये MGDSC की like organization view है. So what it's very simple to like create a repository. Okay, let me just go to the organization view. You will be working on like you have a personal account of GitHub, but like अभी MUGDSC का organization portal है, तो like हम वहाँ पे एक repository बनाएंगे
correct? Now, so like this is the organization, correct? Not this one, this one. Yeah. So now you can see like इधर कोई repository नहीं है जिसमें हम काम कर सकते हैं. अभी हम एक new repository create करेंगे. So just create a new repository and like ये काफी basic details मांगेगा कि like repository का नाम है आपको क्या रखना है. Basically folder का नाम आपको क्या रखना है, correct? So like इधर आप लिख सकते हो fun readme कुछ भी like क्योंकि like test project है. तो like मैं कर सकता यहाँ पे कर सकता हूँ like activity readme जो हमारी पहली activity है, correct? The description में like you can just write anything कि this is a demo project while teaching about MUGDSC. stuff like कुछ भी मतलब जो आपको like significant लगे MUGDSC. And we will make this repository public क्योंकि like हम चाहते हैं कि आप भी एक बार देखो visit करो. So like ये public रहेगी. And like here you can see there's a add a readme file option. So हम ये like अभी इस पे क्लिक कर देते हैं. ये एक automatically एक by default readme file का template हमको दे देगा which we will edit later. And like git ignore and licenses मैं एक बार glimpse दे देता हूँ क्या होते हैं. So yeah, correct. So like git ignore क्या होती है फाइल है. git ignore काफी एक स्पेशल फाइल होती है किसी भी एक प्रोजेक्ट में जिसमें git यूज हो रहा है. So like किसी भी प्रोजेक्ट में अगर कोई फाइल है तो गिट उसका ट्रैक रखता है, करेक्ट? लाइक कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, कुछ भी लाइक डिलीशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सब वो ट्रैक रखता है. बट कुछ फाइल्स ऐसी होती है आपके प्रोजेक्ट में जो आपको लाइक अवॉइड करने की, मतलब वो गिटहब पे ना जाए या फिर गिट उनका ट्रैक ना रखे, करेक्ट? So like to ignore those folders or those particular files, we mention those folders in this particular git ignore file. तो जैसे मेरे पास सपोज कोई फोल्डर है मिसलेनियस करके, एक मिसलेनियस फोल्डर होता है हर प्रोजेक्ट में जब अपने लोकल सिस्टम में रखते हो, बट आपको वो लाइक गिटहब पे नहीं डालना है. तो आप लाइक बस उस फोल्डर को मेंशन कर सकते हो कि लाइक मिस्क करके या फिर जो भी आपका नाम है मिसलेनियस, उस फोल्डर को लाइक इग्नोर करो. तो उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो लाइक गिटहब पे नहीं जाएगा, करेक्ट? तो लाइक वो हम अभी बना लेते हैं. लाइक इतना सिग्निफिकेंट यूसेज नहीं है, बट लाइक हम एक नोड बेसिस पे कर लेते हैं. तो इसमें टेम्पलेट्स भी आपको दिए रहते हैं. तो अगर आप नोड सेलेक्ट करते हो, करेक्ट, तो नोड में आपके कुछ डिफॉल्ट मॉड्यूल्स होते हैं जो आप यूज करते हो लोकली, बट आपको पुश नहीं करने होते. जैसे नोड मॉड्यूल्स, अगर यहाँ पे कोई जावास्क्रिप्ट या फिर रिएक्ट बैकग्राउंड से है तो उनको पता होगा नोड मॉड्यूल्स काफी एक बड़ा पैक होता है जब लोकली रखते हो यूसेज अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, बट लाइक गिटहब पे नहीं डालते. तो वो नोड मॉड्यूल्स का लाइक जो फोल्डर होता है वो यहाँ मेंशन रहता है. नोड डॉट जेएस समथिंग फाइल जो होती है जो लाइक आपको इग्नोर करनी होती है, वो टेम्पलेट आपको दिया रहता है यहाँ पे बना के. एंड यू कैन लाइक अगर आप और फोल्डर्स ऐड करते हो तो वो भी आप इस टेम्पलेट में ऐड कर सकते हो, करेक्ट? एंड लाइक एट द एंड यू हैव लाइक लाइसेंसेस. सो लाइसेंसेस जो आपके प्रोजेक्ट में जो आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे. जैसे अगर आपका प्रोजेक्ट है कि लाइक लोग चेंजेस कर सकते हैं बट लाइक रीसेल नहीं कर सकते आपके कोड बेस को, करेक्ट? तो लाइक उसके लिए यू हैव अ डिफरेंट लाइसेंस फॉर लाइक GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस. बट लाइक वी आर जस्ट लाइक यूजिंग अ वेरी स्मॉल लाइसेंस में काफी बेसिक डिटेल्स है कि हर चीज इसमें हो सकती है. तो वो है हमारा MIT लाइसेंस एंड काफी लाइक फ्री होता है. तो आप हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. We've got one question. Will you Yeah. please explain again what is git ignore? ओके श्योर. लाइक मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार यूज केस इसका बता ही देता हूँ करके. तो लाइक एक बार रियल वर्ल्ड एक दिख जाएगा यूज केस. सो ओके, कंटिन्यूइंग टू द कंट्रीब्यूशन पार्ट, लाइक मैं गेट इग्नोर करता हूँ अभी कवर साथ में. तो जो लाइक डेवलपर्स है वो VS कोड भी यूज कर सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज VS कोड. लाइक एक ऑनलाइन एडिटर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. सो इट्स नोन एज गिटपॉड. सो लाइक ये काफी लाइक इजी टू यूज है. इसमें लाइक मतलब कोई पेड सर्विस भी नहीं है, ऑल्दो लाइक पेड सर्विसेज है इनकी, बट लाइक जो फ्री वर्जन है वो भी काफी लाइक मोर देन सफिशिएंट है. सो लाइक इसमें आप क्या कर सकते हो ना, लाइक आप अपना अकाउंट बना लो, आप अपने गिटहब से लॉग इन कर सकते हो. एंड बस आपको क्या करना है कि किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आपको ओपन करना है गिटहब पे, तो बस आपको उसकी लिंक कॉपी करनी है. मैं लिंक एक बार चैट में भी भेज देता हूँ तो साथ में भी कर सकते हो. या ऑल्सो यू हैव गिटपॉड. या करेक्ट. Thanks Ritik. And after that you just need to do what you need to do is gitpod.io वाली जो लिंक होती है वहाँ पे जाओ
and just write hash here and paste that link, जो भी आपके GitHub repository की लिंक है जो यहाँ से मिली है, and बस इसको like enter कर दो. Correct. So ये एक ऑनलाइन डैशबोर्ड खोल देगा. ओके, repository not found. That's unique. Oh, okay, my bad. Okay, I think we need to grant the access. Okay, yeah, so like ये step मेरा रह गया था actually. So you just need to access, आपको grant करना पड़ता है कि you can access these particular repositories. अभी like access नहीं था, but like आपके में by default आएगा. Okay, so just need to authorize it, and okay, so it will open the project. Cool. So जितनी भी फाइल्स आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे लाइक एक वर्चुअल VS Code एनवायरनमेंट में खोल देगा. और लाइक अगर आप मतलब VS Code अवॉइड करना चाहते हो, क्योंकि ये तो छोटी सी एक्टिविटी है, राइट, अगर आप भी अभी सिर्फ एक बार ट्रायल लेना चाहते हो तो गेटपॉड यूज कर सकते हो. ऑलराइट, करेक्ट. सो थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि लाइक एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है, देन क्लस्टर क्रिएट करके उसके टॉप पे चलाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है इसमें. मीनवाइल लाइक एक बार मैं और ग्लिम्स दे देता हूँ गेट इग्नोर का. सो कोई कुछ पूछ रहा है क्या अभी? ओके, नो इशू. ठीक है, तो या ओके कूल. सो गेट इग्नोर फाइल में मैं एक बार बता देता हूँ क्या होता है. तो जैसे गेट का काम क्या है, फाइल्स का ट्रैक रखना, राइट, कि मतलब चेंजेस हो रहे हैं, कौन कौन से क्या एडिशन डिलीशन हो रहा है. एंड गेट इग्नोर में वो वाली फाइल्स या फिर वो वाली फोल्डर्स मेंशन रहते हैं जिनको हमको इग्नोर करना है. लाइक गेट उनका ट्रैक नहीं रखेगा बेसिकली. लेट्स से लाइक वही किचन वाला एग्जांपल अगर अपन कंटिन्यू करें तो लाइक किचन में है कि अगर आप केक बना रहे हो तो आपको लाइक केचप का काम नहीं होगा ना, तो आप उसको साइड में रख दोगे. लाइक ऑल्दो अगर आप कोई साइड डिश बना रहे हो तो लाइक आपको यूज में आ सकती है, बट लाइक वी आर नॉट गोइंग टू लाइक ट्रैक कि मतलब केचप कहाँ है, क्या हो रहा है उसके साथ. लाइक उसको साइड में रख दोगे, इग्नोर करोगे. तो लाइक वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. लाइक अगर आप केक बना रहे हो तो लाइक उसके अकॉर्डिंगली आप इंग्रेडिएंट्स को लाइक ट्रैक रखोगे कि गेट उसका क्या डिलीशन हुआ, क्या एडिशन हुआ, एंड वो सारी चीजें. लाइक इतना यूजुअली टाइम लेता तो नहीं है, बट ओके, we can like do it manually as well, but like अगर टर्मिनल खुल जाए तो बेटर रहेगा. ओके, मीनवाइल में बता देता हूँ हम क्या क्या अभी कवर करेंगे. सो लाइक फर्स्ट वी आर क्रिएटिंग अ रीडमी फाइल. लाइक हम जो रीडमी फाइल बनाएंगे उसको क्रिएट करेंगे वापस से एक न्यू टेम्पलेट के साथ. एंड उसमें हम ब्रांचेस वाला कॉन्सेप्ट भी एक बार लाइक विजिट करेंगे. एंड उसके बाद मीटिंग प्रैक्टिसेस, देन लाइक PR कैसे रेज करते हैं, एंड देन जो चेंजेस आपने करे लाइक वो गिटहब पेजेस पे डिप्लॉय हो जाएंगे. करेक्ट. सो लाइक ऑलराइट, सो गिटपॉड तो आई थिंक आई डोंट नो चल क्यों नहीं रहा है यहाँ पे. तो फिर वापस ट्राई करते हैं. न्यू वर्कस्पेस क्रिएट कर सकते हैं, मे बी लाइक ग्लिच आया होगा कोई सा. Guys, till then you can keep asking questions in the chat box. Yeah, sure. Okay, it's running now, I think. Okay, so yeah, like Ayush has also mentioned कि like आप GitHub स्टूडेंट बैग भी ले सकते हो. तो GitHub स्टूडेंट बैग में आपको काफी चीजें मिल जाती है, लाइक काफी टूल्स जो काफी पेड रहते हैं, लाइक बट ओके, लेकिन हम इस पे भी विजिट करते हैं. Okay, like meanwhile it's running, we can avoid it and we can like just clone this repository and we can manually do the changes. Okay, like VS Code तो I think आपके पास होगा ही. We can like do these changes manually. So just आपको क्या करना है कि okay, it's running meanwhile. Just आपको ये लिंक कॉपी करनी है while you are cloning the project. Okay, and मेक श्योर कि आपने गिट इंस्टॉल करा हो. अगर नहीं करा तो लाइक मैंने लिंक शेयर करी थी, आप काफ़ी इजीली इंस्टॉल कर सकते हो. एंड बस आपको लाइक आपके टर्मिनल में जाना है, CMD में ओपन करना है, एंड लाइक लेट्स से कि दिस इज द डेस्टिनेशन वेयर यू नीड टू क्लोन योर रिपोजिटरी.
तो आप कैसे करोगे? जस्ट नीड टू राइट git clone and the link of that repository, correct? Like activity readme file जो हमने बनाई है अभी, and just clone it. Okay, so it's like asking for the browser signing up. So you just need to like sign in with your browser. काफी small process है authenticate करवाने बस. So like you just need to write your credentials here, and इससे like काफी easily हो जाएगा ये. Alright. There's a glitch. I'm not sure about it, but I think हमको login पूरा करना पड़ेगा. But usually मांगता नहीं है. But you just need to write your login ID here and password. So like उससे changes आप कर सकते हो, right? So talking about the like manual part, GitHub में luckily features भी है हमारे पास. ये start हो जाएगा तो मैं यहाँ पे भी बता दूंगा. I don't know why it's not starting. But let's say कि आपका project है, correct? Now you have to contribute to it. So the first step is like cloning the project, जो कि हम अभी कर रहे हैं, but वो process हो नहीं रही है, unfortunately. So but luckily you can all like do these things manually as well, like on GitHub. So आपको क्या करना है यहाँ पे, mainly जो आपका पूरा project है, correct? आप यहाँ पे एक new branch create कर सकते हो. So let's say you have a branch here called like names. आपने एक branch बनाई names, जो कि main branch से ही बनेगी. So now like हमने एक branch तो भी बना ली, but what is a branch at the first place, correct? So let's talking about like branch first of all, and we will like move forward to commits and everything after that. So branch like मतलब हम क्यों करते हैं कि अगर आपका एक प्रोजेक्ट है तो ब्रांचेस से आप क्या कर सकते हो कि आप मल्टीपल पार्ट्स बना के अलग अलग फीचर्स पे एट द सेम टाइम काम कर सकते हो, करेक्ट? लेट्स से आपको कोई फीचर है एंड लाइक वो यूजुअली बन कैसे रहा है कि लाइक आपका एक प्रोजेक्ट एक फीचर है वो बनेगा, देन उसके बाद फिर दूसरा फीचर बन सकता है, करेक्ट? बट ये तो लाइक काफी गलत प्रोसीजर है. इससे काम भी लाइक प्रोडक्टिविटी भी स्लो होती है एंड लाइक चीजें रुक जाती है सो लाइक इट्स गिट ब्रांचेस जो है वो यही चीजें सॉल्व करता है कि लाइक भले आपके कितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हो, राइट? भले भी लाइक कितने भी आपको 10 फीचर्स साथ में इम्प्लीमेंट करने एक एंड लाइक एट द एंड साथ में शिप करने, इन दिस केस आप सारे फीचर्स को साथ में यूज कर सकते हो. ओके, सो लाइक लेट्स से कि आपका सपोज कोई फीचर है, हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं यूट्यूब का, करेक्ट? सो लेट्स से कि मास्टर ब्रांच जो है जिसमें आपका मेन कोड बेस है जो कि लाइक यूजर्स यूज कर रहे हैं एट द एंड, जो डिप्लॉयड है पूरा एप्लीकेशन या पूरी वेबसाइट, वो मास्टर ब्रांच पे उसका पूरा कोड बेस है, पीपल आर यूजिंग इट एंड देन यू नीड टू लाइक ऐड मोर फीचर्स टू इट. ठीक है, सो लेट्स से कि लाइक जैसे यहाँ पे एक लिटिल फीचर है हमारे पास, तो लिटिल फीचर क्या हो सकता है कि लिटिल फीचर में लेट्स से कि जितने भी आइकन्स हैं हमारे यूट्यूब एप्लीकेशन में, करेक्ट? आपको उन आइकन्स को लाइक स्टाइल करना है, थोड़ा बहुत लाइक स्टाइलिंग चेंज करनी है, मे बी लाइक साइज बढ़ाना है या फिर लाइक मे बी लाइक शैडो देनी है, काफी छोटा सा फीचर है. तो लाइक उन तरीके के लाइक उस टाइप के फीचर्स आप लिटिल फीचर वाली ब्रांच पे कर सकते हो. और लाइक लिटिल फीचर तो हमने वैसे एक नाम दिया है, आप कुछ भी लाइक अलग से नाम दे सकते हो, बट लाइक एक लिटिल फीचर भी छोटे से छोटे फीचर और बड़े से बड़े फीचर, जैसे यहाँ पे हम ले तो हो सकता है कि कोई एक AI बेस्ड मॉडल है जो कि लाइक ट्रैक करता है कि आप किस तरीके के वीडियोस देख रहे हो, देन उस हिसाब से आपको लाइक यूट्यूब प्रीमियम सजेस्ट करता है. देन उसमें लाइक आपके फ्रंट एंड भी आएगा कि लाइक यूट्यूब प्रीमियम का लेआउट भी कैसा रहेगा, कहाँ पे ऐड आएगा, किस पॉइंट पे ऐड आएगा, लाइक कॉम्प्लेक्स फीचर्स हैं. तो वो सब भी लाइक आप बिग फीचर वाली ब्रांच में कोड कर सकते हो. एंड लाइक आफ्टर चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग कि आपको लग रहा है कि ओके आइकन्स आर आल्सो वर्किंग फाइन एंड दैट यूट्यूब प्रीमियम फीचर इज आल्सो लाइक वर्किंग परफेक्टली, देन आप इसको लाइक मास्टर ब्रांच में मर्ज कर सकते हो. देन जो लाइक यूजर्स हैं वो उसको यूज कर सकेंगे, करेक्ट? ओके, आई कैन सी लाइक देयर आर सम क्वेश्चंस इन द चैट और नॉट. No, Okay. Yash. Cool. You can continue. Sure. So like यही ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट रहता है, राइट? Okay, Yash, I have a question that as you explained branching very well, if there is a newbie or a beginner, so Git branching is a bit complex thing. As we know, we have done all this, and so how would you explain to a beginner, to a newbie, like if someone just start after this session, so how would you explain कि basically Git branching है क्या? Like ये थोड़ा सा अगर एक और broader way में समझा पाओ.
श्योर। सो गेट ब्रांचिंग लाइक जैसे मैंने लाइक इनिशियली एक सेंटेंस में बताया था कि लाइक अगर आपका कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है एंड उसमें साथ में काफी सारे कॉम्प्लेक्स फीचर्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, करेक्ट। सो आप लाइक प्रायोरिटी बेसिस पे तो नहीं काम कर सकते ना कि लाइक अगर ये इशू प्रायोरिटी वाला है तो पहले इसको करेंगे फिर उसको करेंगे फिर दूसरे को करेंगे। इससे प्रोसीजर भी स्लो होगा, जो आपका एंड टू एंड एप्लीकेशन है वो भी लाइक काफी डिले के बाद शिप होगा, करेक्ट। लाइक इन चीजों को अवॉइड करने के लिए व्हाट वी यूजुअली डू कि लाइक हम गेट यूज करते हैं। गेट लाइक ऑफर्स दैट गेट ब्रांचिंग फीचर। सो लाइक काफी लाइक इजी होता है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, लेट्स से आपके पास काफी कॉम्प्लेक्स टीम है, आपके पास डिजाइनिंग टीम है, आपके पास डेटा साइंटिस्ट की टीम है, फ्रंट एंड बैक एंड इंजीनियर्स। तो सही ब्रांचेस बना के अपने अपने कॉपीज पे काम कर सकते हैं। बेसिकली ब्रांचिंग लाइक मेक्स अ कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर कोड। जैसे अगर मेरे पास ये एक कोड है, ठीक है, मैंने यहाँ से कुछ चेंजेस करे एंड यहाँ पे एक ब्रांच आ गई, करेक्ट। तो यहाँ तक जितने चेंजेस थे वो यहाँ पे भी हैं, बट यहाँ जो हो रहे हैं वो यहाँ नहीं होंगे मेरे पास, लाइक इन दिस केस। एंड यू कैन ऐड दोज फीचर्स, यू कैन लाइक ऐड मल्टीपल कोड चेंजेस, काफी चीजें हो जाएंगी यहाँ पे। एंड देन आफ्टर लाइक चेकिंग एवरीथिंग आप मर्ज कर सकते हो। तो लाइक इससे क्या हुआ कि लाइक इसमें जो चेंजेस हो रहे थे वो भी नहीं रुके, वो भी होते गए साथ में। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी कोड चेंजेस होते गए। Yes, yes. So basically it allows her to work simultaneously. बहुत सारे लोग एक या ही प्रोजेक्ट करेक्ट, पे काम कर सकते हैं. या यू कैन वर्क इन अ टीम, करेक्ट। Okay. So luckily our git pod is also running, and please avoid that background noise. I cannot do anything for that. So now we are having a readme file here, okay, which said कि like ये आपकी readme file का नाम है as a heading, and like this is like a short description जो हमने लिखा था, correct. Now as a contributor let's say कि आपको इसमें कुछ changes करने, right, तो हम इसी ब्रांच को अगर लें यहाँ पे, तो लेट्स से कि जो मास्टर ब्रांच है, इन दिस केस वी आर हैविंग दिस मेन ब्रांच, ओके, एंड लाइक मेन ब्रांच में हम जो चेंजेस करेंगे वो लाइक मेन ब्रांच पे ही होंगे, वो दूसरी ब्रांच पे नहीं होंगे। जो मतलब दूसरी ब्रांच आपको बनानी पड़ेगी एट द फर्स्ट प्लेस, करेक्ट। सो लेट्स से कि लाइक आपके मास्टर ब्रांच में जो कोड चेंजेस है वो हमको भी रखने, हमको पूरे हटाने नहीं है, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू एक्सपेरिमेंट मोर एंड एक और हमें फीचर इंप्लीमेंट करना है। तो वो आप कैसे कर सकते हो? सो यू जस्ट नीड टू लाइक गो टू द टर्मिनल, और एक टर्मिनल में भी अगर अपन नहीं जाते, सो लाइक यहीं पे हमने एक नेम्स वाली ब्रांच बनाई थी, करेक्ट। सो लाइक नेम्स वाली ब्रांच कंसिडर कर लो कि लाइक ये जो लिटिल फीचर है ना, ये एक नेम्स वाली ब्रांच है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो भी चेंजेस करूंगा वो मेन ब्रांच में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। आई कैन शो यू दैट एज वेल। सो यू कैन सी कि लाइक अभी हम नेम्स वाली ब्रांच पे ही हैं और यहाँ पे जो हमारी सारी फाइल्स है वो प्रेजेंट है। अब हम डायरेक्टली जाके लाइक readme.md फाइल में चेंजेस कर सकते हैं। सो लेट्स से कि लाइक एडिट हमने करा, ठीक है। नाउ एज अ कंट्रीब्यूटर लेट्स से कि आपको इसमें कोई चेंजेस करने, सो आपने लिख दिया कि ओके जस्ट राइट नेम्स एंड लाइक यू कैन लाइक ऐड योर नेम हियर मे बी, ओके, एंड या जस्ट आप अपना नेम ऐड कर सकते हो। ये हमने थोड़ा सा चेंज करा यहाँ पे, करेक्ट। एंड यू कैन ऑल्सो लाइक सी द प्रीव्यू, okay, it's running. Now here you have to commit these changes, right? So like what are changes, like why we need to commit these changes at the first place? हमने change तो कर लिया, हम direct save कर सकते हैं, all right? Okay, so okay, yeah, readme is the MD file. MD file is usually like a lower level version of HTML. Like जैसे आपकी hypertext markup language होती है ना, this is markdown language. So like काफी static मतलब static pages आप इसमें बना सकते हो। Similarly like किसी ने HTML पढ़ी हो तो like उसमें आपने देखा होगा कि headings H1 से H6 तक रहती है, correct? Here you have like these hashes जितने, there's an echo I believe. Yes, sir. Okay. Yeah, now it's perfectly audible now. All right, I think it's fine, right? Okay. So now you have done the changes, but आपने changes जो करे वो like हमें थोड़ा पता है या फिर जो मेंटेनर है उसको नहीं पता चलेगा जब तक आप उनको commit नहीं करोगे, right? And ये commit वो वाला नहीं है, ये commit like saving the files, okay? So like commit में आप एक मैसेज लिख सकते हो, तो like मैसेज अब क्यों लिखना है इसका भी एक रीजन है, right? So let's say कि आपने changes करे and git देख भी रहा है कि आप changes कर रहे हो, but git एक तरीके से ना एक उसको ट्रैक रखना पड़ता है आपके सारे लॉग्स का, राइट? ताकि लाइक आपने क्या चेंजेस करे, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे करे, किस चेंजेस के बाद करे, उसके बाद क्या चेंजेस या एक्टिविटी क्या हुई, वो सबका लॉग गेट रखता है, करेक्ट।
Okay, so what you can do in this case कि like आप जो changes कर रहे हो आप उनको commit कर सकते हो by writing a message जो आपका like future aspect में काम आएगा. So you can just write कि in this case we have added some names here, like I have added my name. Yes, लिख सकते there is हो. a question in the chat that is instead of using Gatepod, we can directly download GitHub extension in VS Code. Will it work the same? Yeah, but like right now in this particular PC we are not having VS Code. That's why we are using it for. Although like we can clone this, but like unfortunately we have to log in and there's an entire procedure. So it will not take more than like 1 or 2 minutes, but I don't want to waste time. So abhi hum nahi kar rahe, but like we can do similar things here as well. Like we have the terminal. If it's working, then we can like I can show you the commands as well. Okay. But like in this case, let's just do each and everything manually. So Git बेसिकली लाइक एक तरीके से आप समझ लो कि फोटोज लेता है हर एक चीज की, राइट? कि आपने कोई चेंजेस करे तो वो आपकी एक फोटो क्लिक करेगा. एंड लाइक इट्स लाइक आई थिंक सबने गजनी मूवी तो देखी होगी. वो हर चीज की फोटो लेता है तो लाइक उसको नीचे नाम लिखना जरूरी है वरना उसको नहीं पता क्या है, राइट? तो लाइक फोटो तो ले लेगा बट लाइक नाम लिखना भी इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. सो लाइक हियर वी कैन जस्ट नाम की जगह वी कैन राइट अ मैसेज लाइक अ शॉर्ट नोट कि हमने क्या चेंजेस करे हैं यहाँ पे. हम लिख सकते हैं कि नेम्स सेक्शन एडेड. ओके, ये मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया. बट लाइक दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. हमने यहाँ पे नाम्स लाइक नेम्स ऐड करें, लाइक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ऑलराइट, नाउ कमिट करने के भी लाइक कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, करेक्ट? सो लाइक when you are committing certain changes, like ये कुछ representations होते हैं when like you can like represent कि किस type का commit है, right? So if you are changing anything or like if you are adding a whole new feature into your application or जो भी आपका code base है, then you can like just write this feat keyword here, right? So आप जैसे feat लिखोगे and then you can like describe that particular thing कि okay I've added this particular thing and like please review it. तो लाइक ये रिप्रेजेंटेशन काफी इजी हो जाता है समझने के लिए, ओके कि इस पर्टिकुलर कमिट में हमने एक फीचर ऐड करा है. सिमिलरली अगर आप कुछ चीजें फिक्स कर रहे हो कि अगर आपने कोई एरर फिक्स करा या फिर कोई चीजें आपने फिक्स करी तो उसमें यू कैन यूज दिस फिक्स कीवर्ड. स्टाइलिंग या लेआउट चेंजेस करे, यू हैव स्टाइल. अगर आपने कोई कोड चेंज का रिफैक्टर करा है किसी कोड चेंज को या फिर एक तरह से जैसे लाइक यूजुअली सीनियर्स रिफैक्टर बहुत करते हैं कोड चेंजेस को. जैसे अगर आप जूनियर हो आपने कुछ फीचर इंप्लीमेंट करा है लाइक वो अच्छे से काम कर रहा है, करेक्ट? बट इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा और अच्छा हो सकता है, करेक्ट? लाइक एज अ सीनियर लाइक मैं आपके कोड को रिफैक्टर करूंगा कि मैं उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन अलग कर दूंगा. मे बी लाइक एरे की जगह हैश मैप यूज कर दूंगा जिससे थोड़ा इम्प्लीमेंट अच्छे से हो जाएगा वो. तो लाइक ये रिफैक्टर अगर आप कर रहे हो कुछ चीजों को तो आप रिफैक्टर डाल सकते हो. इफ यू आर लाइक एडिंग टेस्ट या फिर कुछ आपने कुछ टेस्ट के केसेस डाले तो आप वो टेस्ट भी डाल सकते हो. डॉक्यूमेंटेशन अगर आपने चेंजेस करे तो डॉक्स रिलेटेड. एंड कोर मीन्स लाइक यू आर वर्किंग ऑन अ फीचर विच लाइक यूजुअली इट्स लाइक अंडर डेवलपमेंट ओनली. लाइक मतलब अगर आपने फीचर डाला है आपने कमिट करा है कोड चेंजेस को बट अभी वो फीचर बना नहीं पूरा, लाइक अब इसमें और आपको काम करना है और चीजें आपको मेंटेन करनी है. तो लाइक उसको अवॉइड करने के लिए कि अगर हम डायरेक्टली मर्ज ना कर ले हम आप यहाँ पे कोर्स लिख देते हैं. तो कोर्स हम ये समझ सकते हैं कि लाइक कि अभी ये फीचर जो है हमें इसको मर्ज नहीं करना है, अभी लाइक इसमें हमको और काम करने की जरूरत है, करेक्ट? Okay, so you have well explained these specify the type of commits, but why is it necessary to specify the type of commit? Yeah, sure. So like there are two reasons कि like पहला रीजन तो ये है कि like आपको आइडेंटिफिकेशन में इजी हो जाता है कि आप समझ पाते हो कि किस टाइप के चेंजेस हैं. मैं एज अ मेंटेनर एकदम से समझ जाऊंगा कि ओके दिस कमिट हैज अ फीचर तो मैं उस हिसाब से उसको लाइक कंसिडर करूंगा एंड लाइक उस हिसाब से कोड रिव्यू करूंगा like that. And also like in many like big projects like small projects में तो usually नहीं होता but like कुछ libraries अगर आप में contribute करो जैसे React हो गया या फिर Python की कुछ libraries है तो वहाँ पे ना कुछ like automated bots होते हैं जो कि like track रखते हैं कि किस type के commits आ रहे हैं, correct? And according to that they automatically changes the versions and automatically release the new version of that project. तो अगर आप एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर एज अ डेवलपर आप शीट लिख के कोई कमिट कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली मर्ज होने के टाइम ऑटोमेटिकली एक न्यू रिलीज क्रिएट कर देगा. लाइक जैसे अगर आपका अभी करंट वर्जन 2.0.0 है, करेक्ट?
और अगर आपने फीट लिख के कोई कमिट करा तो वो कर देगा 2.1.0 लाइक वन वर्जन अहेड ऑफ दैट, करेक्ट। सिमिलरली अगर आप फिक्स करते हो किसी चीज को तो वो क्या कर देगा, लाइक थर्ड प्लेस जो है वर्जन की वहां पे कुछ एडिशंस कर देगा, लाइक 2.0.1 2.0.2। तो लाइक वहां पे ये चीजें काफी मैटर करती है कि लाइक आपके जो लाइक रिलीजेस होते हैं, ऑटोमेटेड रिलीजेस, वो ऑटोमेट हो जाते हैं इसके थ्रू। एंड लाइक फिर आपको लाइक रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है कि लाइक दिस एंटायर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट। ऑलराइट, ओके, कूल। So like after that we are having this a section for the get commands. So like right now like we are manually adding all of these things. You cannot like we are not having our terminal here as of now. Okay, so but if you are having a get bash here, I can like show you the implementation for it as well. So like let's say कि like अगर आपके पास कोई आपने कोई changes करे, yeah, quiz will be after this. Yeah, you can like take the screenshot of these commands, like काफी helpful होती है। So like जैसे मैंने कुछ changes करे, correct, जैसे like मेरे पास यहाँ पे ये readme फाइल खुली है, मैंने यहाँ पे मैंने मेरा नाम ऐड कर दिया for a demo purpose, right? And right now you can see like if I'm writing get status, तो like ये मेरे को बता देगा कि like जो status है मेरे command का, like वो बोलेगा कि like अभी ना currently कुछ changes हुए, you can see like this particular file has been modified. So you can like see okay this particular file में changes हुए। अब आप चाहते हो कि like इस फाइल को मेरे को कमिट करना है कि जो चेंजेस मैंने करे मेरे को सेव करके रखने। सो वो आप कैसे कर सकते हो, तो फॉर दैट यू हैव दिस कमांड कॉल गेट ऐड। सो लाइक आप किसी भी फाइल को लाइक एक साथ एट द सेम टाइम कमिट नहीं कर सकते। फर्स्ट आपको उस फाइल को बोलना पड़ता है कि ओके मेरे को तेरे में जो चेंजेस है वो कमिट करने। जैसे लाइक इसको ऐसे ले लो कि जैसे शेफ हो आप एंड आपको केक बनाना है, करेक्ट, आपको इंग्रेडिएंट्स मिल चुके हैं, आपने ढूंढ लिया सब सामान, पता आपको कहाँ है, चेंजेस वगैरह हो गए, अब आपको लाइक यूज करना है उनको। तो आप उनको एक जगह ला के रखोगे ना, लाइक मे बी लाइक जो आपका जहाँ पे आप अपनी वर्क स्पेस है, केक बना रहे हो, वहाँ पे सारे सामान को आप ला के रखोगे, तो लाइक सारी चीजें आपके लाइक वहाँ पे सेव रहेंगी। तो लाइक सिमिलरली आपको लाइक सारी चीजों को ना ऐड करना पड़ता है। तो लाइक सिमिलरली कैसे आप कर सकते हो, तो लाइक गेट ऐड, and like in this case we need to add this particular file here, right, readme.md file. तो जस्ट आपको लाइक readme.md यहाँ लिखना है एंड लाइक आपको बस एंटर कर देना है। तो सिमिलरली आपको क्या करना है कि लाइक आप देख सकते हो कि अगर आप स्टेटस चेक करोगे तो आप देख सकते हो कि ओके आई एम राइटिंग इन दिस अपर केस। Yash, there's one question in the chat. Yeah, sure. Tarun is asking, how can you fix a broken commit? Yeah, sure. Sorry, I was on mute. Just wait a minute. Okay, so like how we can like revert back to that particular commit, right? Can I see the question like where it is? Okay, broken commits कैसे आप fix कर सकते हो? So let's say कि आपने कुछ changes कर लिए, right? And आपने commit भी कर दिया, आपने उनको push भी कर दिया, but now there's a condition कि like जो आपका पुराना जो feature था वो break हो रहा है, ठीक है? Usually होता है projects में ये। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, या तो अगर वो बहुत छोटा सा चेंज था, ठीक है, तो लाइक आप वो मैनुअली चेंज कर दो और एक न्यू कमेंट बना दो वापस से। बट अगर ऐसा नहीं है तो क्योंकि लाइक ये क्योंकि प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है ना इस चीज का, लाइक लेट्स से कि अगर आपने बहुत बड़ा फीचर लाइक लेट्स से 2 या 3 मॉड्यूल्स वाला एक बड़ा फीचर है, उसको लाइक आपने इम्प्लीमेंट करा है एंड यू हैव टू लाइक रिवर्ट बैक टू दैट पर्टिकुलर कमिट। सो व्हाट यू कैन डू इन दैट केस कि जैसे लाइक मैं आपको इसी में ट्रैक में बता देता हूँ ये। तो सपोज मेरे पास अभी मैं अगर लॉग देखूँ, लॉग बेसिकली लाइक गिट ना हर चीज का लॉग रखता है, जो भी आपने चेंजेस करे हैं ना आपके उसमें उन सब का लॉग गिट रखता है। तो लाइक गिट लॉग में आप देख सकते हो कि कौन कौन से कमिट्स हुए हैं। लॉग बेसिकली ये होता है, मैंने अगर आपको यहाँ पे बताया था ना ये लॉग्स है कि लाइक ये कमिट है, ये कमिट है, ये सारे कमिट्स हैं, राइट। एंड यू कैन जस्ट लाइक रिव्यू दीज चेंजेस, लाइक काफी इजीली आप कर सकते हो ये। एंड लाइक you can just like write git log here. Okay, I think I'm not able to type well.
Okay, ignore git pod. I don't like why it's not working. So log basically like हर चीज का log रखता है. अब आपको suppose revert back करना है. So there's a proper command for that. तो जब भी आप कोई चीज commit करते हो ना, let's say कि like मैं अगर यहाँ पे ये changes commit कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने changes commit करे, you can just write कि आपको names branch पे commit करने. You can see here कि names branch पे commit करने. जैसे आपकी ये वाली ब्रांच है, इसी ब्रांच पे अपडेट करना है कि या फिर डायरेक्टली मास्टर ब्रांच पे ऐड करने चेंजेस, वो भी आपके पास एक फीचर है यहाँ पे, बट हम नेम्स ब्रांच पे ही कर रहे हैं, राइट. तो आप ये मैसेज लिख के डायरेक्टली कमिट कर सकते हो चेंजेस, एंड नाउ लाइक इट्स वर्किंग एंड लाइक नाउ योर चेंजेस आर सेव्ड. ठीक है, आप देख सकते हो कि जो आपका कोड है, कोड वाला टैब है, वहाँ पे जो आपका लाइक जो नेम्स वाली ब्रांच पे है, वहाँ पे यू कैन सी कि जो रीडमी है वो अब चेंज हो गई है, करेक्ट, जो हमने चेंजेस करे थे, मीन्स कि आपका फीचर इम्प्लीमेंट हो गया है. अब पर ये चेंजेस मास्टर ब्रांच पे नहीं है. अगर आप मेन वाली पे जाओगे ब्रांच पे, वहाँ पे यू आर हैविंग स्टिल लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट. बट हियर यू कैन सी लाइक यू आर हैविंग दिस कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट बटन, राइट. तो लाइक इसके थ्रू आप कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो चेंजेस, बट अभी हम वो थोड़ा रुक के करेंगे. ऑलराइट, नाउ लाइक काफी लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका एग्जीक्यूशन है. तो जैसे अब मेरे को लाइक मेरे साइड से नेम्स वाली ब्रांच पे जो चेंजेस है वो मेरे को लगता है कि बिल्कुल सही है, राइट. मेरा केक जो है वो नेम्स वाली ब्रांच पे बन चुका है. अब मेरे को लाइक मास्टर वाली ब्रांच पे लेके जाना है उसको. लेट्स से कि लाइक नेम्स है किचन, नेम्स आपका किचन है, किचन में आपने केक बना दिया, एंड लाइक मेन आपका जो लाइक लिविंग रूम है, वहाँ पे सब लोग बैठे हैं, वहाँ पे आपको केक लेके जाना है. काफी लाइक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है. तो लाइक नाउ यू कैन मर्ज ऑल ऑफ दीज चेंजेस. तो आप एक तरह से आप उस वाले रूम में जा रहे हो, अगर हम एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो वो भी काफी लाइक इजी प्रोसीजर है. अगर आप मैनुअली करोगे तो लाइक आपको जस्ट कंट्रीब्यूट पे क्लिक करना है, एंड नाउ यू कैन लाइक ओपन अ न्यू पुल रिक्वेस्ट. ओके, नाउ यू कैन लाइक सी कि मेन ब्रांच के अंदर हम जा रहे हैं हमारे नेम्स ब्रांच के चेंजेस, एंड लाइक ये हमारा जो हमने कमेंट लिखा था वो है. यू कैन आल्सो लाइक ऐड अ फर्दर डिस्क्रिप्शन फॉर इट कि वी हैव added a names section in the readme file. Okay, ये आपने डिस्क्राइब कर दिया अपने चेंजेस को, एंड नाउ यू कैन लाइक क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट. करेक्ट, cool. So let's say like our changes are like done. अब as a maintainer what I can do now is like I can review these changes. तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि okay like ये files change हुई हैं, and like ये फाइल ये प्रीवियस था, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि लाइक प्रीवियस जो कमिट्स थे वहाँ पे ये वाली लाइंस थी, एंड हमने वो हटा के लाइक ये हमारे एडिशंस कर दिए यहाँ पे, ये भी आप देख सकते हो. एंड लाइक एज अ मेंटेनर लाइक इफ आई एम लाइकिंग दिस चेंजेस की मेरे को लगता है कि बिल्कुल सही है, सो आई कैन जस्ट लाइक दिस looks good to me, and like I can just approve these changes here. Okay, now after everything like further discussions and everything, I can merge these changes. तो जैसे इसको merge करूँगा, like confirming the merge, you can see like this like branch is being merged in the main branch. So like यहाँ पे क्या हुआ है कि देखिए जो लिटिल फीचर वाली ब्रांच है ये मास्टर में आके जुड़ चुकी है, और जो चेंजेस हैं वो अब मास्टर ब्रांच पे भी है. तो लाइक अगर मैं आपको अभी दिखाऊँ यहाँ पे, तो लाइक यू कैन सी मेन ब्रांच पे जो रीडमी फाइल है यहाँ पे मैं दिखाऊँ, तो यहाँ पे देखो हमारे चेंजेस आ गए. सिमिलरली वी हैव द सेम चेंजेस इन द नेम्स ब्रांच एज वेल. तो इससे आप देख सकते हो कि ओके चेंजेस आपके सेव होके कमिट हो चुके हैं, राइट. ओके, कूल. नाउ आई Yash, थिंक one more question. Ayush is asking, how can we add our files to GitHub? या सो ओके दैट्स अ गुड क्वेश्चन. सो लाइक लेट्स से कि ये तो आपकी फाइल्स यहाँ पे है, राइट. यू कैन आल्सो ऐड अ फाइल हियर. सो you can also like upload a file. अगर आपकी सिस्टम में कोई फाइल है आप अपलोड कर सकते हो, बट इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल हियर, सो ये भी काफी इजी प्रोसीजर है. यू कैन जस्ट गो टू क्रिएट अ न्यू फाइल, like name that particular file, let's say contributing.md. अब इस फाइल का भी मैं एक हल्का सा लाइक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि ये क्या होती है. सो लाइक contributing.md भी लाइक एक काइंड ऑफ अ रीडमी फाइल होती है, जिसमें लाइक आपकी सारी कंट्रीब्यूशन गाइडलाइंस भी होती है कि लाइक व्हाट आर द प्रॉपर वेज यू कैन कंट्रीब्यूट इन, एंड लाइक स्टेप्स दिए रहते हैं कि आपको ये कमिट्स के पैटर्न्स फॉलो करने हैं. हमने ये बॉट यूज करा हुआ है तो आप कमिट्स ऐसे मत करना, इन तरीकों से करना. इफ यू वांट टू लाइक
like use this particular code in your Mac, then इसके लिए आपको पहले ये करना पड़ेगा install, then आप contribute कर सकते हो. Like ये सारी चीजें यहाँ पे mention रहती हैं. Correct. Like ये हम अभी बनाते हैं, तो let's say कि मैं बस यहाँ पे भी एक contributing heading डाल देता हूँ, contributing, and मैं इस फाइल को यहाँ सेव कर देता हूँ. And you can see कि like मैंने ये main branch में add करी फाइल, तो ये मैंने main में तो करी है, ठीक है. You can see this file here. मैं यहाँ पे जाके देख भी सकता हूँ changes मेरे. You can see this contributing heading here. Now like names पे अगर मैं switch करूँ तो like I cannot see these changes क्योंकि like मैंने merge नहीं करी ना branches को. तो like you can see like ये file है ही नहीं, तो ये path ही मतलब गलत आ रहा है. Right. So this is how you can work with several branches and like several files. Yeah. Correct. So this is how like like you can add multiple files in this GitHub UI. Okay, Yash, I am having one question. If we made changes in any branch, अगर हमने कोई changes करे हैं कुछ branch में, so हम उसे ensure कैसे करें कि वो successfully master branch में भी हो चुके हैं changes, जैसे अभी तो बस branch में वो commit हो रहा है, but how can we ensure that yeah, cool. So like आप करेक्ट, अगर हम वो बहुत माइनर सा चेंज, आपको फाइल का नाम भी पता है कि लाइक मेरे को पता है कि इस फाइल में चेंज हुआ है, तो आप उसमें जाके देख सकते हो कि लाइक दिस इज द मेन ब्रांच एंड वी कैन सी कि ओके दिस चेंजेस हियर, नेम्स वाली ब्रांच पे नहीं है, यहाँ पे है. करेक्ट. नाउ व्हाट इन अ केस कि आपके पास मल्टीपल फाइल्स है, लाइक मे बी लाइक हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स आर चेंज्ड, राइट. सो इन दैट केस यू हैव टू गो टू द प्रीवियस कमिट्स. सो जितने भी हम लाइक कमिट्स करते हैं ना, वो लाइक यहाँ पे आके सेव होते जाते हैं मास्टर ब्रांच में. You can see like here, like right now we have done 4 commits, by default. Like पहली commit में हमने branch folder repository create करा, फिर उसके बाद हमने names का section वाली branch बनाई, फिर उसके बाद हमने merge करा, उसके बाद हमने like contributing वाली file बनाई. तो यहाँ पे आप पूरा log देख सकते हो, और हर एक log का एक special ID होता है, तो आप उस particular like basically time machine की तरह ये काम करता है, बहुत like easy concept है. तो ये सारे like check points हैं आपके. अगर आपको लाइक पास्ट में जाना है कि ओके मेरे को नेम्स वाले टाइम पे जाना है, तो आप बस क्या कर सकते हो, आप बस इस पे क्लिक कर दो, तो अब आप लाइक उस पर्टिकुलर जोन में आ चुके हो. ठीक है. Okay, so let's can we have quiz now? Yeah, like everything is nearly done, and like right now we can get started with the quiz. So I think the quiz is basically like a very easy question based quiz. काफी like GitHub and Git से related questions होंगे उसमें. So I think like we just need to share the link, right, in the chat. Yes. Hello. Yes. We're doing. Okay. Yes. Okay. I think the core members can share the link if it's possible. I think everyone is Yes, we are excited for the providing quiz. you with the links. Yeah. Yeah. Cool. So like that was about the GitHub and GitHub UI. We have discussed a lot about branching, and also what you can do now is you can like do all these changes, and like please do let us know on the Discord if you are facing any issues. Like changes आप करो, and like आपको कोई issues आते पूछो, अगर आपने खुद से कुछ बनाया तो वो भी share करो. Like that would be like really grateful. And yeah, like don't forget to join the Discord server, as like every parameter of being selected as a top performer will be provided in Discord. So make sure that you are joined. Okay, so the link is provided in the chat box. So as you can see. Cool. Okay, so I think some like good questions are coming as well in the chat. So like we can see how we can host our files on GitHub.io. GitHub.io or like Gitpod.io. I'm not sure. Yes, in the meantime, guys, continue with the quiz. The links have been provided in the chat box. Okay, can we start the quiz? Yes. Cool. 1, 2, 3, go. Go. 5 already there. Guys, you can just visit that link and select your answers. Wait. I'll start the quiz. Okay, let's start. Anyone else joining? Cool.
You have 10 seconds. 10 seconds. Asmi, the link is provided in the chat box. I'll resend it. Yeah, Anshul have done it. Next question. Link for the quiz is in the chat box. You all can see there. I think we are great going. Next Guys, question. come on. Next question. Oh, nice. So, like, what all you are feeling about the questions? Is it difficult or medium? Are you enjoying it? Nice. Which command creates a copy of an existing GitHub repository? Yes, many of you got it right. How to initialize a Git repository in a specified directory? I think people are enjoying the quiz. Yeah, because they already know the stuff, right? Yeah, I Or think that's basically because of the session. They were the listening it session. very briefly. Quiz is fun. Yes, Anshul, it is. What's the shortcut to staging all the changes in the code base? You all got it wrong. How to commit changes. This one's easy. ये तो मुझे भी आता है. Yeah, same. I think people know it maybe. Yes, everyone They are got it able to- right. Yeah, they are able to do the quiz, I think. So I think you all are enjoying the quiz. And I hurry up, have guys. the leaderboard. So we'll be telling the top performers on the Discord channel. So I'll just take the screenshot. Good job, everyone. You all did really great. Good job. Nearly 50 people were there in the quiz. That's great, guys. I saw lots of It's great. And make people sure to join participating the in. Discord server. Yeah. and Can keep an eye anyone on the please Discord drop server. the Discord link once more in the chat? Yes, Athar, sure. Yash, till then we can, I guess, take some question. Naman is sure. asking how to host our website on GitHub pages. That's something we are going to like do now after the quiz. So like it's a very easy process. बस आपको like जो files जो भी आपका project है उनको setup करना है. Then like there's a special feature on GitHub pages. So like काफी manually हो जाता है. We're going to do it. So quiz is done. Let's go with the hands-on project now. Yeah, sure. Okay, let me screen share again. Okay, is it visible? Yes, Yash, it is. Good. So like first we will discuss like how we can add anything on GitHub pages. Then we are going to like have a short activity for you all. Okay. So first of all, like about talking about GitHub pages, so like it's very easy. अब GitHub pages like पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या करता है basically.
सो वो दो तरीके की फाइल्स या फिर लाइक index.html फाइल या फिर लाइक readme.md फाइल. Although like you can by default optimize it, but ये दो फाइल्स को मैन्युअली जाके लाइक ऑटोमेटिकली अपलोड कर देता है. ठीक है, इट विल टेक लाइक अराउंड some seconds. So हम अभी वो करते हैं. So let's say you have to host this readme.md file on GitHub Pages, correct? So how you can do it is just going to settings and then just go to the pages section here. And so like right now you have to set up pages as well. So like pages काफी like अगर आपका personal account है तो हो जाएंगे. So what you can do now is pages आप यहाँ से भी जाके कर सकते हो, काफी like easily हो जाएंगे. But we are already having a file for you all जिसमें like GitHub Pages है हमारे पास पहले से. So the way you can do it is like just go to this image.dsc file, and now we are going to go to this personal account. All right, and now you can just see the access. Okay, so like you are having this particular file, and just go to this particular user. जैसे like अगर हम GitHub में MUGDSC पे जाएंगे, so like this is the user account for that, this one, right? And like right now you are having this portfolio website. Okay, and now you can see like I'm having this index.html file. Cool. So like here also like let's say like we are having a small project. Let me just give you a like short glimpse of it. So let's just create a whole new repository from like scratch, and let's just upload it on GitHub Pages. So like this, right? GitHub Pages demo. We can avoid the description as of now, and we will keep it public, because like if you will make your repository private, you can definitely like host it on GitHub Pages, but there's a like some issues are there like in that case, right? So we are going to keep it public, and let's add readme, git ignore, everything that we discussed. Something like node we can like go for node, actually not none, and license can be like MIT in this case. Okay, and the default branch is going to be the main branch. So you can see like we are having this readme. Now हम इसको like अब GitHub Pages पे host करेंगे. कैसे करेंगे? Settings पे जाके we have this pages section. Just write कि कौन सी branch में से आपको file लेनी है and किस file को आपको host करना है, correct? And we are going to select the main branch, because like right now we are having the main branch by default. And we are going to like look upon the root folder. जैसे हमारे पास root folder में वो branch है, right? किसी external या फिर internal folder में जाके नहीं है हमारे पास. So we are going to select root and just save it. Okay, so now when you have saved it, like it's saying like it's ready to publish. Now you can go to this link. Initially it will say like 404. It will take some time till it's like uploading it. But like कुछ seconds में हमको wait करना पड़ेगा. ये green हो जाएगा जब that means कि site host हो चुकी है. So I think we need to just let's open this in the new tab. Okay. I think It will we take have some got time. great response from the quiz. They have really enjoyed the quiz. Okay, that's cool. Yeah. That's cool. Yeah. Some questions were difficult according to them, but yeah, Mhm. still. But yeah, less time surely adds some fun and competition. So it's great, I guess. Yeah, correct. Yeah. So I don't know, like it's taking a lot of time. It depends on the complexity of the pages as well. Yeah, okay, it's you can see here. Now the README file that we had here, like this one, it's being like hosted here. Okay, it's also saying कि like आप इसको improve कर सकते हो, ये automatically आपको एक link भी देता है. But now you can see like GitHub Pages पे आप post कर सकते हो चीजों को, right? अब ये तो suppose एक README file है. In this case, let's upload a HTML file. बहुत like छोटा सा एक कोड लिखते हैं हम HTML का. Not uploading upload a file. We need to create one. Sorry, my bad. So let's create a new file. Okay. So there's that button. Create new file. Okay. So create new file, and let's talk about like index.html. Okay. Now index.html में like अभी मतलब आप पूरा आपका जो भी आप अगर अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो या फिर लाइक कोई शॉर्ट ई कॉमर्स या फिर कुछ भी लाइक जनरल पर्पस लर्निंग मोड में जब बनाते हो ना वेबसाइट्स काफी सारी, तो लाइक वो आप यहाँ बना सकते हो.
But in this case, we have already added a project for you all. So we are going to discuss about that. So like how you can do it is like this particular project we have created for you all. So here you can see like we are having this index.html. So like ये priority basis पे काम करते हैं, correct? अगर आपका कोई folder है उसमें कोई भी फाइल अगर नहीं है, readme और index फाइल नहीं है, index.html नहीं है, तो वो कुछ भी host नहीं करेगा, वो maybe blank screen दिखाएगा या कुछ भी नहीं दिखाएगा, correct? And अगर फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है कि index.html को, अगर index.html फाइल है अगर किसी प्रोजेक्ट में, तो हम उसको होस्ट कर देता है GitHub पेजेस ऑटोमेटिकली. अगर वो भी नहीं है then it looks for readme.md file, and अगर वो भी नहीं है तो it's just going to show you a blank screen. So in this case we are having an index.html file and you can also see the code base here. हमने टेम्पलेट कोड पहले से बना रखा है for demo purposes, so that you can also contribute to it and add some more features. So if you will see set in the settings tab, you can see कि जो GitHub pages पे link है वो hosted है, and ये भी मतलब main branch and node directory पे ही है. And if you will just go to this link, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये हमने demo site बना रखी है, correct? It's काफी basic HTML है, हमने CSS डाल दिया था यहाँ पे पहले ही. So you can see कि index.html को इसने priority दी, right? If I'm going to write here readme.md, you can see what's happening here. Okay, this is sample text. वो host नहीं कर रहा है उसको, वो फाइल खोल के आपको दे देगा, but वो host नहीं करेगा उसको उस तरीके से जिस तरीके से हमने पहले readme फाइल को host करा था. So that's how it works, right? So it's a temporary solution अगर आपके पास domain नहीं है और मतलब आप अगर पोर्टफोलियो आपको होस्ट करना है तो कौन डोमेन खरीदता है यूजुअली इनिशियली, तो तब उस केस में हम GitHub पेजेस यूज कर सकते हैं. So this is only we have done the quiz. Now this is the second activity that we're going to do, and it's a really fun activity. We want कि आप लोग इसको करके एक बार ट्राई करो. So what you have to do in this case is let's say कि ये आपके रिपोजिटरी है, मैं इसकी लिंक भी शेयर कर देता हूँ चैट में. Yes, someone is asking what is viewport. Viewport in which case in on GitHub. अगर GitHub के बारे में है viewport, तो viewport basically होता है कि it's like a scope जिसमें आपको फाइल्स ढूंढनी है. viewport basically वो बताता है आप किस अभी ब्रांच पे हो, किस ब्रांच की फाइल को आपको एक्सेस करना है, कौन सी ब्रांच को होस्ट करना है, लाइक दैट. दैट्स हाउ viewport. बट ये एक्चुअली GitHub पे आप डायरेक्टली नहीं देख सकते, Git पे होता है यूजुअली. बट viewport ये डिफाइन करता है कि किस फाइल को हमको लुक अपॉन करना है एंड किस फाइल को होस्ट करना है हमको, ये बताता है. आई थिंक काफी मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था. So talking about what you need to do in this case, okay, is there anything else? No. So okay, you are asking HTML files. Okay, I just saw that. Yeah, he's particularly asking about HTML files. Okay. So HTML files में viewport basically ये show करता है कि जो भी आपका screen का size है, let's say हम उस code piece पे जाके देखते हैं. तो here also you can see कि यहाँ पे ना viewport आपको कहीं ना कहीं हो सकता है दिख ही जाए, बट अगर नहीं भी दिख रहा हो तो यूजुअली viewport ये बताता है कि जो भी आपका स्क्रीन का साइज है उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हो. एंड नेम viewport मतलब यही है कि ये रिस्पॉन्सिवनेस में काम आता है. तो लेट्स से कि ये साइट हमने जो डिप्लॉय करी हुई है ये वाली, इसका साइज हमने डिफाइन नहीं करा है कि इसकी बैकग्राउंड की विड्थ कितनी रहेगी, पेज का साइज क्या रहेगा, वो हमने स्पेसिफाई नहीं करा है. बट फिर भी हम इसको जब भी जूम इन जूम आउट करें तो ये ऑटोमेटिकली उस हिसाब से सेटल हो रहा है. यू कैन सी दैट. तो वही चीज हमको viewport हेल्प करता है. तो ये टैग बेसिकली क्या कर रहा है, मैं अगर एक्सप्लेन करूँ शॉर्ट में, तो ये बोल रहा है कि एक मेटा टैग बनाओ जो कि बिहाइंड द पेज काम करेगा ऑन द ब्राउजर, एंड किसको टारगेट करेगा, viewport पे टारगेट करेगा. एंड इनिशियल स्केल क्या रखेगा, 1.0. तो जो पूरा पेज है ना वो जूम इन या जूम आउट नहीं रहेगा, वो 100% साइज पे रहेगा बाय डिफॉल्ट. एंड आप भी यहाँ पे देख सकते हो कि बाय डिफॉल्ट 100 ही था ये पहले. सो ये सेट करने का काम आता है. तो कोई भी स्क्रीन का साइज हो वहाँ पे ये चल जाता है रिस्पॉन्सिवनेस. आई थिंक
वो क्लियर हो गया होगा. Okay, cool. So now, yeah, the hands-on activity. So like what we want from your side, that what you can do in this case, like activity में आपको क्या करना है कि ये आपको टेम्पलेट एक तरीके से दिया हुआ है. Okay, and आपको ऐसे कंट्रीब्यूटर क्या करना है, आपको लाइक इसको फोक करना है, और द लाइक ओके आई कैन फोक इट टू द ऑर्गेनाइजेशन. सो एक तरह से कॉपी बन गई है यहाँ पे, राइट. सो आपका भी खुद का जो गिटहब अकाउंट होगा वहाँ पे आप इसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हो, एंड लाइक यू कैन सी यू आर हैविंग दिस कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट. एंड नाउ व्हाट यू कैन डू, आपको जो index.html फाइल है ना आपकी, उसमें आप देख सकते हो कि लाइक जो ये आपका पेज है MEGDSC, दिस इज द लिंक फॉर द resume and like these are socials, right? So what you need to do in this case कि आपको यहाँ पे HTML में जाके ये चीजें edit करनी है. Maybe like you can write your name here at the place of MEGDSC, and then you can like add your resume's link to this particular icon, like here in this A tag. All right. Now you can add your LinkedIn, you can add your Facebook, you can add your GitHub, and you can like definitely add more icons as well, you know. And if you want, you can change the design, change the template. This is just a template that we are giving to you. You can like experiment with it, like जो भी आपको multiple sections add करने, complete portfolio बनाना है, आप बना सकते हो. And then feel free to like share it on socials. आप maybe हमको tag करो, and like maybe आप Twitter या LinkedIn पे जहाँ पे भी active हो वहाँ पे MEGDC को tag करना है, and with the link of this GitHub pages. तो जब भी आप changes करोगे, you can see कि like यहाँ पे GitHub pages नहीं है, क्योंकि ये तो आपकी प्रोजेक्ट की कॉपी है, राइट. जब आप इसमें changes करोगे, you can also like just go to settings and just go to the pages section and host it, right. तो अगर मैं इसको host करूँ, Neha is asking how to fork. Okay, so guys, like make sure to join the Discord server. All the links are provided in the chat box, and yeah, don't forget to be the first one to do the hands-on project. And yeah, just okay, I should be audible now, correct? Okay, sure. Actually, there was a power cut here. So, okay, cool. So like right now you can see also the screen is visible, right? Okay, cool. So now what you can do here is just select the source. So you can see that there's the main branch. Okay, and we also like have to use the root directory for that, and we can save it. Okay, cool. So like how to fork, actually like मैंने अभी बताया ना, what you can do just कि जो मैंने रिपोजिटरी यहाँ पे भेजी है, करेक्ट, मैंने शायद लिंक शेयर कर दी थी. सो जस्ट आपको यहाँ फोक सेक्शन जो होगा ना वहाँ पे क्लिक करना है, एंड जो आपका अकाउंट होगा ना वहाँ पे कॉपी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, लाइक द वे वी हैव डन हियर. एंड वहाँ पे फिर आप चेंजेस कर सकते हो अपने, करेक्ट. एंड देन यू कैन जस्ट होस्ट इट. तो होस्ट जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि होस्ट हो चुकी है. तो आई थिंक टाइम ले है, आई एम नॉट श्योर. ओके, सो सी लाइक यहाँ पे भी MEGDSC का जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भी, और लाइक ये मेरे यूजर अकाउंट पे भी होगी. सो दैट्स हाउ यू कैन आल्सो लाइक, जैसे अगर यहाँ पे मैं अपना अकाउंट दूँ, मेरा नाम जैसे यश से ही है, तो यहाँ पे yashcycle.github.com/portfolio वेबसाइट, ऐसे आपको भी लाइक आपका यूजर नेम के साथ लिखना है. एंड दैट्स हाउ यू नीड टू इट. एंड आप अपने चेंजेस कमिट करके एक PR रेज कर सकते हो, जो मैंने अभी बताया था. And similarly, like you can like raise a post on LinkedIn and Twitter, and feel free to tag MEGDSC, share the link of your GitHub pages जो भी आपने deploy करी अपनी site, and maybe like add a attachment, like कोई short video use करते हुए portfolio, या फिर एक screenshot भी चलेगा, वो भी काफी better है. And then like according to that we are going to like maybe like give you some swags maybe, or like certificates maybe, like that. Like it's a very good activity, and you're also going to learn a lot throughout the procedure. Like okay, so Mayank is asking one question. He's a Python developer, so how can he do the related projects on GitHub and contribute to them? Yeah, sure. So like as a Python developer, Mayank, what you can do, you can add
like at the end host your project on GitHub because it's a website. But surely like there are so many projects related to Python. तो मतलब आप अगर Python developer हो तो अगर आप contribute करना चाहते हो just search for Python, काफी easy होता है. You just need to go to search section in the GitHub and just write language and write the name of that language, maybe like Python, and search like all of the GitHub, right? And now you can like see for like there's so many projects, like you can see there are 2 million plus projects or like repositories based on Python. According to your like skill sets, according to your level of knowledge about Python, आप देख सकते हो projects अगर आपको issues ही ढूंढने directly. So like you can see there are 24 million plus issues here. Like काफी bunch of issues हैं, आप इसे ढूंढ सकते हो. And like GitHub सबके लिए काम आता है. Like GitHub तो मतलब अगर आपको वीडियो एडिटिंग भी करते हो तो भी आप यूज कर सकते हो. It's just a tool to like manage your projects, track everything, track changes and everything like that, and work in a team. So like Python project हो, C++ project हो, वीडियो हो, कोई like फोटो एडिटिंग की फाइल्स हो, कुछ भी like आपका कुछ फोटोशॉप फाइल्स हो, आप सब यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो. Like that's how you can like look for projects. Similarly अगर कोई C++ का डेवलपर है, like he or she can search for CPP, like language CPP, and then you can like search CPP based. Okay. Yeah, you can see like 1 million plus projects are there, based on C++. Like that's how you can like look for projects. So I think मैंने मतलब like मैं बता दिया होगा. And then like it's just about like looking for projects, exploring more and more, being involved more and more in the community. And then then आप start करने में like eligible रह सकते हो, क्योंकि बहुत tough हो जाता है like initially. So that like time spend करो and like धीरे-धीरे like आपको समझ में आने लग जाएगा projects के बारे में. Okay, so like how we can get a forked file on our local system. Okay, Mohit, so like as I like already told you, like मैं बता भी देता हूँ. So जैसे like हमने like अपना जो fork करा था project, right? There also like you can see कि एक code वाला button है, ये मैंने fork करा हुआ है. बस इसको यहाँ पे आपको clone करना है, copy करना है ये link को. एंड जो भी आपका टर्मिनल है, जैसे यहाँ पे तो चलो लाइक वो लॉगिन प्रोसीजर में एरर आ गया था, बट लाइक यू जस्ट राइट गेट क्लोन एंड दैट पर्टिकुलर लिंक, ठीक है. एंड आप सारे चेंजेस यहाँ भी कर सकते हो. बट लाइक आप जरूर प्रैक्टिस करो, बट लाइक फॉर पर्टिकुलरली दिस पर्टिकुलर टास्क ये चेंजेस तो लाइक आप यहाँ पे भी कर सकते हो ना. लाइक मतलब आप लिंक्डइन फाइल में जाके एडिट कर सकते हो, देन चेंजेस करके आप PRS कर सकते हो. If you want to use commands with this, then like it's very good, but आप like काफी easily online भी हो जाएगा. So that's how you can fork your and clone your repositories. Yes, could you give them just bit of hint about the desktop, GitHub desktop, if they want to use, if they are familiar? Yeah, actually, if like we are having time, we can like do this login procedure. Okay, guys, Mohit, if you have certain doubts now, you can ask on Discord server. So like any mentors will help you one-on-one. They will help you to get forked. Also, guys, if you will tag us on LinkedIn, tag MUGDSC, it would be great, so that we can take out top performer from it. So don't forget to tag us on LinkedIn. This is important. Guys, as Aditi said, there that's the necessary condition. Like if you are doing this hands-on activity, hands-on project, do share it on LinkedIn and tag MUGDSC so that we can keep track of your activity. Correct. And like it's good कि आप share कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो. Like इससे आपको काफी चीजों को document करने को भी मिल जाता है. Like after this bootcamp as well, जो भी आप कर रहे हो प्लीज शेयर करो. ये काफी हेल्प करता है प्रोफाइल ग्रोथ में. लेकिन थोड़ा साइड प्लग हो गया. Okay, cool. I think everything is nearly done, and I think that's all from my side. I hope सबको पसंद आया होगा. I know like बीच में थोड़े glitches हुए, but I think like मैंने काफी कुछ cover कर लिया है. If you're having like any doubts, feel free to reach me out on Discord. हम like एक बार कुछ doubt हो तो cover कर सकते हैं. Right? Okay, thank you so much, Yash. That was something that is very inspiring. I'll tell you what. I'll tell you why.
Yash is basically a second year student in our college. He joined as we all have done in the same college. He's part of GDSE. And to take to take a 1.5 hour session in front of complete random strangers and letting them know what he has done is something commendable. That was amazing. To all who learned from this session that we delivered, thank you so much, guys, that you all are here and you all invested your 1.5 hours of Sunday morning. No one does that, trust me. And many of you are from the first years. That is something I'm like very elated to see. Also, a special note to our sponsors for this event. Yes, we had sponsors for this event. They are Monad Infotech. They are basically software and app developers in Indore. They're one of the leading software and app developers in Indore. You can go and search them for the LinkedIn. We will also provide the link for them as well. And you can keep in touch if you have any problems of your creation of software or anything, etc. Okay, the bootcamp doesn't stop here. It goes on till whatever extent you can go. This is our motto of club. Like you can grow and you can develop to the extent of like anything, because we have Discord, we have LinkedIn, we have all our mentors active there, and this is like a brave step from all of us to take all your questions 24/7. Just be active there, and we'll keep you looking in our future events as well. We are also planning we are planning different things on basically all the technologies. So stay connected, and we are all friends to you. We are all from the same college. We are not from some MNCs that are coming here and delivering the session. So let's collaborate and learn with each other. And I just love the fact how we ignored some of the negatives in this meeting with all the bugs that were there on the chats. So I'm really proud of that as well, guys. And yeah, with the same limits, and also the feedback form. We have shared the feedback form. Feedback matters a lot to us. Tell us everything, what all you felt in the session. Instead of chatting in the instead of typing in the chats, you can fill the feedback form. From there we learn, and we get to know what we were less and what we could deliver more better in the future. So, and yes, for the goodies, we will be Also, announcing everyone is that. asking about the leaderboard. Like everyone is asking Okay. about the leaderboard, so it will be in provided in the Discord server. So make sure to join Yeah. it.